We'll get started, but a very warm welcome to all of you. In fact, this is the first industrial visit organized by BLL, and we thought why not start with our very own member? Why look out? There is so much of good work happening within the community, and I'm so happy to know that Kamla ke liye bhi, apart from students, they have got a first batch of old students who are also learning in life. So it's first for both. And the whole idea is that as a community, when we are looking at building our businesses, growing together, yes, there are people who are at different stages of their business. They come from different backgrounds, business different scale ka hai, they have different strengths. How do we create an ecosystem where all of us can be part of each other's growth? Now we have primarily two communities, and you know the CXO community is also building. In fact, the first meeting is happening in Sahara Star on 2nd July, where we will also be calling CXOs from very, very large companies now. But the Global League and the Primary League, because Primary League has very, very good service providers and people. So the idea is that today, Kamla group of companies, there are multiple objectives. One is you get to know the company and what they are doing. You get a lot of idea about the sector. Pharma mein kya ho raha hai? It's a major sunrise sector for the whole world. And India, the pharma is known as the pharma hub. बहुत pharma exports कर रहा है. There's a lot of potential. And Dr. Zawar's story is also very inspiring. He'll talk about it. मैं तो नहीं जानती थी. Last time I got to know कि sir was a practicing physician. वहाँ से उन्होंने start किया. You know, he was practicing in Palghar. He had patients, he was doing that, and वहाँ से ये opportunity देख के, because most doctors go and build hospitals and nursing homes. You know, very few doctors build pharma companies. And I think amazing journey as a first generation entrepreneur, and he has at least 25-30 years of active years to put in building Kamla group of companies, and he has the next generation also now into the business. So all of that, you can get inspired and ask questions. And because Kamla as a group is expanding and they are looking at a lot of growth, so any services also that you have, you can pitch. And Dr. Zawar also has requirements. He'll be happy to evaluate, you know, if you meet his requirements. So that's the whole idea. Let's understand, let's do business, but also get inspired and learn from some of the best people that we have in the community. So that's the whole idea of organizing this industrial tour, and you get to see. So this was my first visit to a pharma unit. I have been to a lot of engineering units, but pharma kabhi nahi dekha tha. So it was an amazing experience. I think all of you will also have that experience. So yes, let's know about the company, and let's hear from Dr. Zawar. आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने सर के बहुत सारे YouTube clips देखे हैं. सर बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल बात करते हैं, और he likes talking. He's a natural speaker, so you'll get to hear that today. Thank you. So, good morning everyone. कमला ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन के नाते मैं आप सभी को यहाँ पर बड़े दिल से आपका सभी का स्वागत करता हूँ. ये अपनी भाई की, अपने मित्र की, क्योंकि BLL एक फैमिली है, मैं समझता हूँ, और हम सब उसके हिस्सा हैं. तो आप सभी का, मेरे भाई बहनों का, मित्रों का यहाँ पर स्वागत है. मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी पहली बार होगा कोई फाउंडर्स, कोई CEOs और इस किस्म की कोई कम्युनिटी यहाँ पर विजिट करें. जनरली फार्मेसी कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, और एक्सटर्नल हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं जो हमारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. बेसिकली जैसे मैडम ने बताया, मुझे स्पीच देना बहुत अच्छा लगता है. 1 घंटा 2 घंटा कोई अगर विषय की तैयारी करे तो बहुत अच्छी तरह से बात कर लेता हूँ. लेकिन आज का दिन और आज का जो सब्जेक्ट है, मुझे सच में एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं संक्षेप में एक 20 मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूँगा, कि मैं जस्ट मेरी जीवनी बताऊँगा, कि जन्म से इस मंच तक की कहानी बताऊँगा 20 मिनट्स में. ओके, उसके बाद में किसी को कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन आंसर है, तो उससे 10 मिनट बात करेंगे, तो आधा घंटे का अपना सेशन हो जाएगा. फिर हम लोग राउंड लेके बातचीत करेंगे, नेटवर्किंग का जैसा भी मैडम सोचे वैसा करेंगे.
फिर 1 बजे के आसपास हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। ओके, तो मेरा नाम जैसे कि दिगंबर जयकिशन झंवर, हम लोग राजस्थानी माहेश्वरी मारवाड़ी, हमारे परदादा उद्योग व्यापार के लिए जोधपुर राजस्थान से जलगांव महाराष्ट्र के एक जिले में आए। मतलब 5 पीढ़ियों से हम लोग महाराष्ट्र है, आता आम्ही महाराष्ट्रीयन, आम्ही मराठी। मेरा जन्म एक छोटा सा देहात है साईखेड़ा, 3000 की बस्ती, निफाड तहसील, जिला नासिक। यहाँ पर एक रेड क्रॉस सोसाइटी के एक छोटे खुले में 1970 में हुआ। ये मेरा ननियाल, मम्मी नाना जी नानी जी की एक लौती संतान, मुझे मामा मौसी नहीं, तो हमारा बचपन ननियाल में ही हुआ। वहाँ प्राइमरी एजुकेशन लिया, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, वहाँ से पैतृक गांव जलगांव शेंदुर्णी, वहाँ पर गए, माध्यमिक शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की, वहाँ पर भी जिला परिषद मराठी मुलांची शाळा। बचपन बहुत खुशी से आनंद से गया, छोटा देहात था लेकिन मजा आती थी। उस जमाने के घर दार रहन सहन गांव में कैसे रहता था उसका छोटा सा आपको अंदेशा आने के लिए बताना चाहूंगा कि आप ऐसा समझो कि हमारा घर कैसे 10 बाय 20 का मिट्टी का घर। हम लोग, मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है बताते समय कि हम लोग बड़े सीमेंट कंक्रीट के घर में तो रहते नहीं थे, लेकिन कभी झुग्गी बस्ती में भी नहीं रहे, कभी झुग्गी बस्ती में रहे। मेन स्ट्रीम जो गांव है, गांव की मेन गलियां है, वहां पर भला ही मिट्टी का घर हो, 10 बाय 20 का घर, उसमें मम्मी पापा और 5 भाई बहन रहते थे। जमीन में फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, पीला रंग देने वाला वो 40 वाट का बल्ब हुआ करता था। मनोरंजन का कोई साधन नहीं, टीवी रेडियो ट्रांजिस्टर, इसके सामने पूरे गांव में ही नहीं है, हमारे पास नहीं तो गांव में ही नहीं है। 50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। बारिश के दिनों में काफी फजत होती थी, मिट्टी के घर थे, हर जगह पर बर्तन रखने पर भी पानी गिरता था, घर में कीचड़, गलियां भी मिट्टी की, गलियों में कीचड़, साफ सुथरा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। वो कपड़े से छान कर बारिश के दिनों में जो भी पानी आता था, कोई बीमार कभी नहीं पड़े, लेकिन अभी बिस्लरी पीकर भी बीमार पड़ते हैं। हमारा स्कूल भी बहुत छोटा, 10-20 गांव में एक ही स्कूल, तो स्टूडेंट्स काफी आते थे वहां पर। 3 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना। ऐसे में स्कूल की बात करूं तो वहां पर भी फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, खिड़कियों का कपाट नहीं, वहां पर भी पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं, शौच शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं। मुझे याद आता है 10वीं 12वीं तक हम लोग लोटा लेके जंगल जाते थे, 10वीं 12वीं तक की बात कर रहा हूं मैं। इस किस्म का एक, और फिर से बताना चाहता हूं, दुख क्यों नहीं था कि हम अकेले ऐसे नहीं थे, पूरा गांव ही ऐसा था। ऐसे में हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती रही, 10वीं की कक्षा, 10वीं में सेंटर हमारा तहसील का गांव जामनेर, 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, एसटी बस से ही जाना। ऑफ कोर्स वहां तो कोई प्राइवेट व्हीकल थे ही नहीं, लेकिन एक बस मिस हो गई तो 2 घंटा स्टेशन पर बैठे रहने का। हम सब जानते हैं कि 10वीं कक्षा का जो स्ट्रेस आज जो होता है वही उस समय पर भी थी। 10वीं बोर्ड की एग्जाम, हम तो जाने आने में ही थक जाते थे, और एग्जाम्स कितना ही साल भर पढ़ाई क्यों ना करें, पहले दिन की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इमीडिएट उसका ताजा लिखने को बहुत ही आसानी होती है, तो आ जाके थक जाते थे। 10-20 गांव में एक ही स्कूल होने के 150 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में, 150, 5 डिविजन्स थे ऑफ कोर्स, A B C D E करके। रिजल्ट लगा, हेडमास्टर ने सबको हॉल में बिठाया और कहा कि ये ब्लैक बोर्ड पे मैं चौक से जितने नाम लिख रहा हूं उतने इस साल उत्तीर्ण हुए, अगले साल बाकी बचे लोगों ने सफल कोशिश करना। बोर्ड पे केवल 15 नाम लिखे गए, 15, 1 से लेके 15, 150 बच्चे में से केवल 15 बच्चे पास हुए। इन दिनों में कई सारे स्कूलों में मुझे
निमंत्रित करते हैं उनके वार्षिक समारोह पर, उनसे वार्तालाप करते समय मालूम पड़ता है कि उनके स्कूल का पिछले कई वर्षों से 100% रिजल्ट लग रहा है। मतलब उनके बच्चे 100, आप भी देखो अपने बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल के रिजल्ट 100% लगते हैं, उस किस्म की शिक्षा दी जाती है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि किस किस्म का शिक्षा का स्तर हुआ होगा उन दिनों में देहात में। फिर से दुख नहीं, क्योंकि केवल मेरी स्कूल ऐसी नहीं थी, ये पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूं मैं। सौभाग्यवश हेडमास्टर ने पहले क्रमांक पर मेरा नाम लिखा, दिगंबर देके संजोत, मैं उस वर्ष पहले क्रमांक से पास हुआ। उन दिनों में जो ऊंचे क्रमांक से जो बच्चे पास होते थे, दो ही स्ट्रीम्स होती थी, एक डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। मुझे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। मैं वहां से नासिक आ पहुंचा, जो शहर का गांव है, तो वहां पर 11th-12th साइंस किया। बनना था एमबीबीएस डॉक्टर। डॉक्टर मतलब एमबीबीएस, यही जानकारी थी। 11 नंबर मैं बहुत सिंसियर हूँ, फर्स्ट बेंचर हूँ और काम पर पूरा फोकस, मतलब पढ़ाई भी बहुत फोकस से किया। 86% मिले, 89% को एडमिशन क्लोज हो गई ओपन कैटेगरी में। 3 ऑप्शंस बचे, एक साल आप रुक जाओ, दोबारा कोशिश करो अगले साल, लेकिन रुकना मना था, रुकना ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डोनेशन दो, केवल 35,000 रुपीज थे। मेरे साथ के कई बच्चे जो जमींदार थे, जो अंगूर की बाग लगाते, गन्ने की बाग लगाते, वो लोगों ने एडमिशन लिया। लोधी प्रवर्ण उस टाइम पे बहुत फेमस था हमारे महाराष्ट्र में, नासिक के आसपास। वहां पर उन्होंने लिया, आज वो अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बना, कोई एमडी एमएस किया। लेकिन डोनेशन देके एडमिशन लेना था, हमारे वो डोनेशन का चैप्टर ही हमारे सिलेबस में था नहीं। तो तीसरा ऑप्शन था कि कोई मेडिकल की दूसरी स्ट्रीम्स में एडमिशन लेके आप अपना डॉक्टर बनो। तो उस कॉलेज के 10-15 बच्चे हम एक साथ नासिक में गणेशवाड़ी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। बीएमएस की डिग्री हमने प्राप्त की, डॉक्टर बन गए। उन दिनों में मेरे जो कजिन थे, 2 डॉक्टर, एक ठाना जिले के मुरबाड़ और शाहपुर, ये 2 तहसील में जनरल प्रैक्टिस करते थे। छुट्टियों में अक्सर उनके पास जाता था। वो आदिवासी एरिया होने की वजह से सुबह से शाम तक रुग्णों की काफी भीड़ रहती थी, कम से कम 100-150 पेशेंट्स हो होते थे। और शाम को जमा पूंजी मुझे आकर्षित करती थी। मुझे लगता था कि मुझे भी ठाना जिले में ही किसी तहसील में जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे भाइयों की तरह मेरी भी क्लिनिक अच्छी चल जाएगी और अच्छा पैसा कमाऊंगा। इस भावना से मैं ठाना जिले के पालघर में आ पहुंचा। पालघर ऐसा क्षेत्र जो हमारा, मैं शेंदुर से हूँ, तो शेंदुर से 500 किलोमीटर दूर। हमारे पूरे परिवार ने कभी उसको नक्शे में भी कभी देखा नहीं पालघर कहाँ है करके, लेकिन मैंने सोचा था ठाना जिला का कोई क्षेत्र में जाता, तो इसलिए पालघर आया। परिवार की बहुत इच्छा थी कि मैं अपने ही गांव में शेंदुर में प्रैक्टिस करूं, कि यहाँ पर सब लोग परिचित है और गांव के दुकानदार बोलो तो सेठ का मुलगा, मतलब तो चांगली प्रैक्टिस करना व्यवस्थित। और फर्स्ट आया था, गांव में नाम भी अच्छा था मेरा कि दिगंबर है तो सही सलाह दे सकता है, प्रैक्टिस अच्छी करे। लेकिन मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था और घर वालों की मर्जी के बिगड़ मैं घर छोड़ा, एसटी बस से पालघर आया। विश्वास करो, 1 रुपया भी मैं घर से लाया, नॉट सिंगल रुपी ना मुझे उन्होंने दिया। जेब में रहते वो कोई क्लिनिक डालने की पूंजी नहीं हो सकती है, उतना लेके मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद जैसे कि हम अपने बच्चों की व्यवस्था करते हैं, डॉक्टर बन गया तो उसके पहले क्लिनिक की जगह, वो फर्स्ट ईयर में रहता तो क्लिनिक की जगह, हॉस्पिटल की जगह की व्यवस्था करते, उसके फर्नीचर की व्यवस्था करते, लोकेशन देखते। मैं उम्र 23 में पालघर आया तो आकर क्लिनिक डालना मतलब कहाँ डालना, तो कुछ सर्वे तो करना पड़ेगा, कोई जगह तो देखनी पड़ेगी। और सर्वे करने के लिए कितना समय लगेगा मालूम नहीं, 1 दिन में भी मिल सकती है, 1 महीने में भी मिल सकती है, 1 साल भर में भी नहीं मिलेगी। तो होटल लॉज में रुक कर बाहर खाना पीना करके सर्वे करना इम्पॉसिबल, जेब में पैसा तो है नहीं। तो हमें डॉक्टर होने के नाते एक अच्छा चीज होता है, किसी भी अस्पताल में आप आरएमओ का जॉब कर सकते हो, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर का। मैं पालघर में साई कृपा नर्सिंग होम डॉक्टर कामरे की यहाँ पर गया कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आप आरएमओ का जॉब दो। फॉर्चुनेटली तुरंत 10 मिनट की इंटरव्यू में उन्होंने 2000 रुपया महीना देंगे, मैंने बहुत धन्यवाद।
वहां पर मैं रुका 2-3 महीनों में, सुबह शाम डॉक्टर को असिस्ट करता था, दोपहर में जो आराम करने का समय था उसमें मैं मेरा सर्वे चालू रखता था। केवल 3 महीनों में मुझे मन पसंदीदा जगह मिल गई क्लिनिक की, 200 स्क्वायर फीट एकदम नुक्कड़ पर, बहुत अच्छा। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे क्लिनिक ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहां विजिबिलिटी हो, कम से कम मुझे ऐसे बताने नहीं पड़े कि बस वो गली में उधर दूसरे माले पर मेरा क्लिनिक है, नहीं, नुक्कड़ पर ऐसी जगह पर हो कि जाते जाते समय लोगों को दिखना चाहिए। तो ओरी क्लिनिक का नाम मैंने मेरे नानी के नाम से, जैसे कमला है तो कमला क्लिनिक करके रखा। फॉर्चुनेटली पहले दिन 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते पेशेंट बढ़ते गए। पहले वर्ष में ही मैं सेंचुरी मारने लगा, 100 पेशेंट रोज देखने लगा, अच्छी आमदनी आने लगी। वो जो जगह मैंने किराए से ली थी, 11 महीने का किराए का जो करार होता है, वो उसको दोबारा किया नहीं, उसको खरीद लिया। उस समय पे 30-35 साल पहले उसको 3.5 लाख रुपए में मैंने उसको खरीदी। क्या वो मेरी पहली एसेट, शायद ही मैं उसको बिकूंगा, ऐसे ही पड़ी रहेगी, मैं कभी जाता ही नहीं, लेकिन वो क्लिनिक की जगह याद करके उसको वहीं से ही रखी है। तो क्लिनिक के बाद 6 महीनों में मैंने मारुति फ्रंटी खरीदी की, जो मुझे बचपन से बहुत प्यारी लगती थी। 35 साल पहले मारुति फ्रंटी पाना मतलब धनवान होने की निशानी समझी जाती थी। मैं 1.5 साल तक एक दिन भी छुट्टी लेनी क्लिनिक को, संडे भी काम करता था, संडे भी, 7 दिन संडे काम करने के पीछे विचार ये था कि संडे के दिन बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद रहते हैं, तो पेशेंट मजबूरी में क्यों नहीं आए मेरे पास, एक बार तो आने दे, फिर मैं उसको कंटिन्यू कैसे करना देख लेंगे। तो वो संडे ने मुझे बहुत अच्छा काम किया संडे के दिन। और दूसरा मुझे जो बेनिफिट दिया, क्लिनिक के बारे में बताता हूँ, फिर आओ 20 मिनट में खत्म करूंगा मैडम, क्योंकि अपने सभी सेशंस में जल्दबाजी रहती है, 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। आपका सेशन है, ये का नहीं है, तो आप यू कैन टेक टाइम। मैं क्लिनिक में किसी भी मतलब झुग्गी बस्ती में बोलो, गांव खेड़े में बोलो, कहीं पर भी विजिट को बुला तो हमेशा कंपलसरी हाँ रहता था। विजिट की फीस कितनी मिलती उस पर मेरी नजर नहीं रहती थी। मेरा यह मानना था कि मैं उनके घर पे जाऊं तो डॉक्टर आपल्या घरी आला म्हणजे डॉक्टर आपला झाला, और मुझे थोड़ी बातचीत ईश्वर की कृपा से जम जाती है। बात कर ले तो आई कशी है, बाबा कसे आहेत, तुम्ही बरे आहेत ना, भाऊ कसा, दादा कसा, कर लेता था मैं वहां पर। तो विजिट्स बार बार हर जगह पर गांव में जाने की वजह से आसपास के हर गांव के पेशेंट्स मेरे पास आने लगे, और 3 परहेज मैंने रखे। मुझे पैसों से बहुत मोहब्बत होने के बावजूद मेरे क्लिनिक में ऐसा कोई शख्स नहीं आएगा जो बिना पैसे होने की वजह से बिना ट्रीटमेंट लेके जाएगा। मुझे तुरंत अंदाज आ जाता था कि इसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आदिवासी एरिया नहीं है। जोर जबरदस्ती कभी पैसा नहीं लिया, कभी भी नहीं है, ठीक है, हरकत नहीं, पुढच्या वेळेस ओके, किराणा दुकान नाही की लिखते रखेंगे करके, लेकिन लिहून ठेवले ना, लक्षात ठेव, लिखते नहीं थे, लिहून ठेवले, पुढच्या वेळेस बरोबर देऊन टाक, हाँ ठीक है, हो जाता था। बहुत बार ईमानदारी से लाके भी देते थे, लेकिन वो नहीं रखा था। उससे उनसे स्नेह बढ़ा, उनको लगता है डॉक्टर खूब चांगला है। दूसरा परहेज रखा था मैंने, जो आसपास के गांव के जो पाटिल होते थे उन लोगों को मैं कभी भी कतार में नहीं रखता था। मेरे यहाँ कम से कम 2 घंटा वेटिंग लगती थी। उनको कभी भी पर्सनल नंबर देता था कि तुम आल्यानंतर मला लगेच सांगा, मी सिस्टरला सांगून तुम्हाला आज घेऊन टाकेन। उसको एक स्पेशल फील होता था कि डॉक्टर आपल्याला वेटिंग नाही करू देत, ताबडतोब आत घेतो। तो वो एक परहेज था। और तीसरा, गांव के जो नगर सेठ है, जो बहुत ज्यादा श्रीमंत लोग हैं, उनको वेटिंग में नहीं रखता था और उनको चार्ज भी नहीं करता था मैं। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके यहाँ 100 एम्प्लॉयज है, किसके 200, किसको 500 है, किसके यहाँ 1000 है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। उनको बहुत स्पेशल फील होता था कि डॉक्टर तो अपना है, आपने तो नंबर में भी नहीं बिठाता, चार्जेस नहीं करता, उनके यहाँ फ्री विजिट्स के लिए भी जाता था। लेकिन उसकी वजह से उनके यहाँ के सभी एम्प्लॉयज वो बोलते चल अपने डॉक्टर करेगा, अपने डॉक्टर करेगा, तो वो सभी एम्प्लॉयज मेरे पास आते थे। इस किस्म का कुछ मैंने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजीज करके मेरी प्रैक्टिस 100-150 पेशेंट तक चलाई। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुई। 1.5 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी, जैसे कि मैंने आपने बताया, लेकिन मारुति फ्रंटी लेते ही 1 सप्ताह की छुट्टी ली और पूरे महाराष्ट्र में जितने मेरे मित्र हैं, जितने मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मारुति फ्रंटी का सफल प्रदर्शन करके आ गया कि दिगंबर अभी धनवान हो रहा है। बहुत मजा आई, बहुत खुशी हुई। बाद में स्वयं की शादी,
5 भाई बहनों की शादी मैंने की, मुझे बहुत गर्व है बताते समय। सभी की शादियां की। शायद मेरे मम्मी पापा को थोड़ी भी चिंता करनी नहीं पड़ी कि आगे का सब कामकाज मैंने किया, खर्चे से लेके शादी की, मतलब खर्चे से लेके सब मेरे बंदोबस्त। क्लिनिक की एक बात होती है कि क्लिनिक की सफलता के बाद में जो एंटरप्राइजिंग अंदर से आता है अभी करे क्या, क्योंकि 10% भी खर्चा नहीं, जो कलेक्शन होता है 90% तो आपका सेविंग ही होता है। तो डॉक्टर्स के लिए सबसे आसान क्या बात हो सकती है, तो रिटेल मेडिकल स्टोर्स। मैंने अपने गांव से बड़े भाई साहब राजू दादा को बुलाया, जो राजू दादा का फोटो से भाई साहब अभी 4 महीना पहले शांत हुए 30 जनवरी को, अनफॉर्चुनेटली वेरी गलत तरीके से एग्जिट हुआ उनका। मेरे बहुत ही क्लोज मित्र थे, मेरे बड़े भाई साहब थे, उनको गांव से बुलाया, एक मेडिकल स्टोर शुरू की। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत आसान, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, मेडिकल स्टोर चलती थी, सफलता तो मिलनी ही है उसको, तो कोई चिंता नहीं। 6 साल मेडिकल स्टोर चलाई। मेडिकल करते करते हमारी नजर पड़ी होलसेलर्स में। हम सोचते थे, दोनों भाइयों की एक बात थी, शाम को खाना खाने के बाद में हम टहलने निकलते थे, रोज रात को 10 बजे खाना खाने के बाद 11 बजे जब भी ओपीडी खत्म हो गई, नवरत्न कलकत्ता कीवाम का पान लेते थे, एक आधा वो खाता था, आधा हम खाते थे। कीवाम का पान का एक ऐसा तरीका होता है, जैसे मीठा पान लेते थे, निगल लेते, कीवाम का मुंह में रखते हैं 1 घंटा भर, तो मुंह में रखकर पान पर चर्चा करते थे और सब्जेक्ट एक ही रहता था, कैसे उद्योग व्यापार का विस्तार करें और अर्थार्जन के नए नए स्रोत कैसे निर्माण करें, यही एक। तो हमारी नजर ऐसी मेडिकल होलसेलर पर पड़ी कि यह हमारे जैसे कितने रिटेलर्स को मेडिसिन देता होगा, तो इसका यह मतलब हो गया कि इसका उद्योग व्यापार जरूर अपने से बड़ा है, इसकी आमदनी जरूर अपने से बड़ी होगी। बस यह विचार से हमने अपनी रिटेल बंद करके होलसेल शुरू की। इसमें भी हमको काफी सफलता मिली, हमारा होलसेल बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हमारी आमदनी 5 गुना हो गई, जो रिटेल की कंपैरिजन में 5 गुना हो गई। और जैसे भी भाई साहब यहाँ आने के बाद हमारे उद्योग व्यापार के 3 स्रोत निर्माण हो गए। पापा की किराना दुकान गांव में अभी भी चल रही थी, मेरा क्लिनिक था, भाई साहब की मेडिकल स्टोर शुरू की, ये 3 गुना, मेडिकल बंद करने के बाद होलसेल शुरू किया था और 5 गुना। तो ऐसा समझ कर सफलता आमदनी ये कंटिन्यूस बढ़ते गया हर साल। अभी होलसेल 5 गुना कमाई, शांत बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी नजर गई, हमारे पास मार्केटिंग कंपनियां जो दवाई बिकने आती हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड्स। हमने सोचा भाई ये तो अपने जैसे कितने होलसेलर को देता, हम तो पालघर में करते हैं, ये तो नासिक जाता होगा, पुणे जाता होगा, मुंबई जाता होगा, बीड़, पूरे इलाके में जाना और मत सब तो फैला हुआ भाई। ये तो हम होलसेल, तो यहाँ से मैं सिप्ला की मेडिसिन औरंगाबाद जाके तो नहीं बिक सकता हूँ ना, उनका एक जुरिडिक्शन भी होता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी होती है। मार्जिन तो इतना ही है, बताते 10% मिलता, 3-4% ही बचता है। लॉजिस्टिक है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, डिलीवरी मैन है, ये सब खर्चा, फिर से रिटेलर का 2% डिस्काउंट, 7 डेज पेमेंट, ये स्टोरी देखते देखते 3-4% भी नहीं बचता। मार्केटिंग कंपनियां क्या करती होगी, इसकी एमआरपी है, जैसे सिप्रान करके सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, 100 रुपया एमआरपी, बनती कितनी में होगी। डॉक्टर को फार्मा का कोई नॉलेज नहीं रहता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है। मैंने सोचा कि ये पालघर, ये क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर कई सारी फार्मा कंपनियां कार्यरत उस समय पर भी थी। अरे जाके देखते हैं, सरस्वती के वास से जीवा पर बातचीत कर लेंगे, 2-4 प्रोडक्ट तो बना लेंगे। तकलीफ कहाँ है, जाने का, बनाने का, एमओक्यू हम बनाएंगे, छोटी सी तैयार होगा कि नहीं रहेगा, रिलेशन बनाते धीरे धीरे कर देगा, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड मार्केटिंग कंपनी नहीं है, हर एक का एक एमओक्यू होता है प्रोडक्शन का। तो मुझे, मेरे लिए 10-20 हजार टैबलेट या 50 हजार टैबलेट, लाख टैबलेट कैसे बना के देगा। बातचीत किया, सफल रही। उन्होंने मुझे पूरी बताया कि आपको मैं छोटी छोटी बैचेस बना के देता हूँ डॉक्टर साहब करके। हमने 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट करते करते 8, 10, 15, 50, 60, 70 प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, हमारे खुद के ब्रांड के नाम में हमने बनाना शुरू की। बहुत अच्छी बास्केट तैयार हो गई, 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया यहाँ पर। इसका सफलता 1 साल में ऐसी हुई कि पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे। ये काम बहुत अच्छा रास आया और इसे हम आज तक चला रहे हैं। उस कंपनी को बंद नहीं किया, वो पहली कंपनी आज भी चल रही है, काइटमार्क हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड करके। अभी फिर मैन्युफैक्चरर्स के पास जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हमको बना के दे रहा है,
भाई हमारे जैसे हजारों लोगों को बना के दे रहा है। तो मैन्युफैक्चर भाई ये तो भारी काम कर रहा है, अपने से कितने लोगों को बना के देता, तो इसका बिजनेस बढ़ा, इसकी आमदनी जरूर बड़ी होगी। तो हमने वो ये विचार ने हमें प्रेरणा दे के अपनी पहली फैक्ट्री लगानी चाहिए। फैक्ट्री लगाई, हिसाब किताब दिखा तो अपने से परे था, उसको लगने वाली पूंजी आउट ऑफ रीच, मतलब क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि मेडिकल ये करने के बाद भी लाखों जमा है, करोड़ों तो जमे ही नहीं थे। ओके, करोड़ों तो हमने देखे ही नहीं थे। ओके, तो मैंने क्या किया, जैसे आज शार्क टैंक होता है वैसा हमने पिच देना शुरू किया। मेरे 5 दोस्तों के पास गया, प्रोजेक्ट दिखा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मजा आएगा, ऐसा हो सकता है, इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, देख उसकी एक फैक्ट्री दिया, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, हम मेहनत करेंगे। तो सब लोगों ने मेरी बात मान ली, 5 लोग तैयार हो गए, 5 लोगों ने मिलकर हमने पहली फैक्ट्री लगाई, इम्पल्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से आधा किलोमीटर के अंतर पर है। 2002 में हमने MIDC से जो प्लॉट है वो आवंटित किया। 2002 से लेकर 2007 लगा, 5 साल लगे हमें पहली फैक्ट्री शुरू करने के लिए। उसमें अनंत बाधाएं आई, पहला प्लॉट लिया, दूसरा, फिर MIDC के रूल्स, उसमें वो अमलकेशन कमीशन के रेट, ये अलग स्टोरी है, 1 घंटा भी लगेगा, बताऊंगा बारीक बारीक। उस समय पे अशोक चौहान यहाँ इंडस्ट्रियल चेयरमैन थे, उनके पास गए, फिर मंत्रालय जीवन में पहली बार गया। उसके बाद में वो सह्याद्री है, वहां पर उन्होंने फिर मीटिंग के लिए बुलाया, सामने CEO बैठे, जॉइंट CEO बैठे, हो आओ बताओ क्या है तुम्हारा इशू। ऐसा था कि 5 लाख रुपए का प्लॉट और 5 टाइम्स उन्होंने मुझे पेनल्टी लगाई कि एक टेक्निकल मिस्टेक के लिए 25 लाख रुपया तुमको भरना पड़ेगा। 5 लाख के वजह 25 लाख लाऊं कहां से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके चक्कर में हमारे 2 साल खराब हो गए। यहाँ का MIDC का ऑफिस, थाना का रीजनल ऑफिस, अंधेरी का हेड ऑफिस, चक्कर काटते काटते परेशान, आखिर किसी की लिंक लगा के हम अशोक चौहान जी तक पहुंचे, उन्हें सह्याद्री पर गए, बातचीत किया और 10 पन्नों का निवेदन जो दिया वो पढ़ते, मैडम पढ़ने को बहुत समझ आएगा, ये मेरे दिन रात दिल में दिमाग में 2 साल से घूम रहा है, आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। उनको पूरी कहानी बताई मैंने, उनको समझ में आई। उनके जो PS थे नेवतकर साहब, उनको बताया की डॉक्टरांचं काम 7 दिवसात झालं पाहिजे। मैंने वापस उनसे निवेदन किया, सर हम लोग जानते हैं किसान अपने महाराष्ट्र में जो ओला या सूखा पड़ता है तो आत्महत्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट सरकार उसको न्याय नहीं देती है तो। मैं MIDC ग्रस्त हूँ, मैं आपके पास पहुंच गया हूँ, मेरा काम अगर नहीं हुआ तो मैं आमरण उपोषण मंत्रालय में करूंगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि मैं अब तक पहुंच गया हूं। हंसने लगे। और मेरा काम 7 दिन में करने की, जो कैबिनेट मिनिस्टर बोलने के बाद भी 7 महीना लगा वो काम पूरा होने के लिए, आखिर हो गया, फैक्ट्री चालू हो गई। हमको लगा कि बस अभी काम हो गया, पैसों की बारिश पड़ेगी, फैक्ट्री लगाई ना, बस हो गया कार्यक्रम शुरू। लेकिन बहुत दिक्कत है, बहुत। देखो, मार्केटिंग कंपनी बनाना, मार्केटिंग कंपनी चलाना एक अलग सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना, उसको चलाना एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। और बेसिक जो होता है ना कि एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन भी नहीं, हम पांचों, हम डॉक्टर का बिजनेस से कोई संबंध नहीं, फार्मा की क्वालिफिकेशन किसके पास नहीं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, या 5 लोगों में कोई तो एक आधा चाहिए, उसमें कुछ नहीं। मतलब आपके पास औपचारिक शिक्षा भी नहीं है, किसी को अनुभव भी नहीं है कंपनी कैसे चलाने का, सिर्फ जोश करना है। और 4 सब फिजिशियन कंसल्टेंट, उनको तो फुर्सत है उनके हॉस्पिटल से। मैं एक बेकार था जनरल प्रैक्टिशनर की, भाई सुबह शाम OPD देखता था और दोपहर में यहाँ पर आके देता, मतलब फैक्ट्री भी पार्ट टाइम चलाने की बात कर रहे थे। तो इस तरह से शुरू हुई। और बहुत सारी जो छोटी छोटी टेक्निकल बातें होती है, इंश्योरेंस कैसा किया जाता है, हम तो इंश्योरेंस को ऐसा समझते हैं कि एक बैंक का लोन लेने के औपचारिकता है, तो हमारी जो कॉस्ट है प्रीमियम कमाने के लिए आधी दिखाओ। इसमें हमें बहुत धोखा खाया, क्योंकि फायर 2008 में फायर लगी, पूरी फैक्ट्री जल गई, 3 करोड़ का नुकसान हुआ पहले ही साल। 3 करोड़ का नुकसान हो गया। ये जो इंश्योरेंस कंपनी बोला परफेक्ट 3 करोड़ तुम्हारा नुकसान है, लेकिन तुमने अंडर इंश्योरेंस हो, तो हमें 1 ही करोड़ मिला। तो मालूम पड़ा कि कितनी बातें कितनी प्रोफेशनली करनी चाहिए, हर चीज मुझे आता है या शॉर्टकट बिल्कुल करना नहीं चाहिए, हम वहां पर सीखे। कंपनी में चोरी हो गई, हमने इंश्योरेंस किया, हम बोले किया मिल जाएगा, इंश्योरेंस वाले को बुलाया, हाँ बराबर है, सब तुम्हारे बुक्स देखे, चोरी तो हो गई है, ये तोड़ा है, दरवाजा टूटा है, सब बराबर है, CCTV दिख भी रहा है।
आपको मिल सकता था, लेकिन आपको प्रिंसिपल इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में बर्गलरी पॉलिसी अलग से लेनी चाहिए, जो तुमने ली नहीं। अभी इंस्टॉलमेंट भर दो, बोले अगली बार काम आएगा, अगली बार चोरी के टाइम पर काम आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि इग्नोरेंस की वजह से एक, और इसका भी इग्नोरेंस कि हमको किसी कंसल्टेंट को पूछना चाहिए, इसका भी कंसल्टेंट के फीस को, ट्रस्ट में हम सब तो सीरियस फाउंडर्स या कोई कंपनी को हेड करते होंगे, कंसल्टेंट की फीस को बिल्कुल अनदेखा करे, अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट का ही राय ले, अच्छे से। मैंने बहुत धोखे खाए और एक पक्का कर दिया, एक पॉलिसी बनाई, कोई भी चीज के लिए कंपलसरी बेस्ट में बेस्ट कंसल्टेंट बुलाओ, उसकी फीस भूल जाओ, लेकिन वो उसकी फीस निकाल के देगा आपको। तो ऐसे धोखे खा के आगे बढ़ते रहे। शुरू में मैं कंपनी चलाता था, धीरे धीरे सीखा, मारवाड़ी हूँ, थोड़ी प्रॉफिट में भी आने लगी। कुछ दिन के बाद 5 डायरेक्टर्स, उसमें डॉक्टर्स को रोज साथ में पूंजी लेके जाने की आदत। 5 साल हो गए, कंपनी में पैसा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम एक्सपेंड कर रहे थे कि जो शॉर्टेज थी, कैसे कि जैसे हमको 3 कंप्रेशन मशीन लगा, पहले 1 लगाई, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, तो घर पे पैसा कहाँ लेके जाओ, आपकी कंपनी के पैसे कंपनी में रह रहे, एसेट बढ़ रही है, लेकिन इसको कोई समझने को तैयार नहीं। उनको लगा कि ये कुछ काम बेकार हो रहा है, इतने साल हो गए अपने पैसे दिख ही नहीं रहे, क्योंकि 2002 से पहले 5 साल तो कंपनी बनाने में गए, 2007 से 2000 तक 6 साल गए। अगर 10 साल 12 साल में आपको 1 रुपया भी रिटर्न जाने नहीं मिले तो परेशान तो हो गई। जो चला रहा है उसको मालूम रहता है कि ये कंपनी में है दम, निकल जाएगा। 2013 में उन लोगों ने एग्जिट लिया। 2013 में मैं सिंगल ओनर बना इस फैक्ट्री, इम्पल्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का। बड़े भाई साहब को डायरेक्टर बनाया और दोनों मिलकर हम लोग कंपनी चलाने लगे। सुबह शाम ओपीडी मेरी चल रही थी, दोपहर में अभी भी बैठता था। भाई साहब आने के बाद भाई साहब दिन भर बैठते थे। मैं मुंबई लोकल से अपने मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को मिलने जाता था। यहाँ एक क्षेत्र मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए 100% एक्सपोर्ट्स के लिए सही है, क्योंकि सभी फार्मा कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसेस मुंबई में, तो उनको फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहाँ हम लोग को प्राथमिकता मिलती है मेडिसिन बनाने के लिए। तो ट्यूसडे और फ्राइडे कंपल्सरी लोकल से धक्के खा के आना, धक्के खा के जाना, और फिर मेरी सुबह शाम की ओपीडी वो देखना। आप विश्वास करो, कई साल तक मैं दोपहर का खाना खाता नहीं था, पीता था। मेरी क्लिनिक, मेरा घर इतने पास में था, मैं मिसेस को बोलता था बस माझे लास्ट पेशंट बघतोय, तू रेडी करून ठेव, पोळी भाजी वरण भात मिक्स कर, वरण जास्त टाक, मिक्सर मध्ये काढून ठेव, एक लोटे में मेरा खाना था, मैं खाना पी के दौड़ता था। कई साल तक, एक दिन की बात नहीं। इस तरह की कड़ी मेहनत की, भागम भाग करने के बाद में आप विश्वास करो, जो मेरे 2013 में मैंने जो कंपनी अपने पार्टनर से ली, वो यह बोल के ली कि हम लोग आपके पैसे बकाया 1.5 साल में देंगे, क्योंकि वह कंपनी में तो सरप्लस था ही नहीं, 1.5 साल में देंगे। और बैंक का भी बहुत प्रेशर था, उनको भी देंगे। लेकिन केवल 6 महीनों में मैंने हमारे सभी डायरेक्टर्स के पेमेंट दे दिए, और अगले 6 महीने में हमने बैंक भी डील कर दी, और 1 साल के अंदर एक कंपनी जो लॉसेस और डगमगाती चलती थी, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ चलाने के बाद में डेट फ्री हो गई। 1 साल में हमारी कंपनी 2013 में डेट फ्री। अभी फिर वही बात, मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास जाने के बाद में, भाई ये मेरे से लेता है, मैं भी मुनाफा कमाता हूँ, ये बाहर जाके भी क्या आता है, ये भी कमाता होगा, और मैं डायरेक्ट तो तुम्हें तो ज्यादा कमाऊंगा ना। लेकिन इन्होंने कभी पता ही नहीं कौन से कंट्री में जाते, हमारी कंट्री। मुझे कुछ रास्ते मिले, ये जाते कहाँ है करके, तो मालूम पड़ा कि यहाँ के ज्यादातर लोग जाते हैं अफ्रीका, नाइजीरिया। तो मैंने सोचा कि मैं भी पासपोर्ट बना लूं। 46 की उम्र में 2016 में हमारे परिवार का पहला शख्स डॉक्टर दिगंबर परदेश जा रहा था, वो भी अफ्रीका, नाइजीरिया जा रहा था। उसके पहले कहीं किसी ने परदेश गया नहीं हमारे परिवार से। 46 की उम्र में अभी तक हमने पूरे गांव का परिवार, मम्मी पापा को यहाँ बुला लिया था, सब अच्छा चल रहा था, पैसा कमा रहे थे, जो हजारों में दिखते थे लाखों में हुए, लाखों का करोड़ों में पैसा आने लगा। मारवाड़ी मायशे में हमने थोड़ी कंजर्वेटिव रहती है, तो मम्मी का जब मालूम पड़ा कि मैं नाइजीरिया जा रहा हूँ, अफ्रीका जा रहा हूँ, तो घर में रोज का ताना शुरू हो गया, दिगंबर तू बहुत लालची हो गया, इतना सब तो बढ़िया चल रहा है अपना, हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा वैसे हमारी वास्तविकता है आज, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि किसी ने उनको बता दिया कि अफ्रीका में और विशेष करके ये युगांडा, नाइजीरिया, यहाँ राक्षस के जैसे आदमी लोग रहते, जाओगे आने की कोई संभावना कम है। तो रोना धोना घर में शुरू हो गया। लेकिन मुझे मालूम था
कुछ होने वाला नहीं है और कंफर्ट जोन से मुझे जाना है। मैं 2016 में नाइजीरिया पहुंचा, वहाँ जाने के बाद मार्केट में घुमा, इम्पल्स की बहुत सारी मेडिसिन मुझे मार्केट में दिखाई दी, उनसे बात किया कि भाई फ्रॉम होम यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन, ओके दिस फ्रॉम माय कंपनी, आई एम द कंपनी ओनर, आई एम कमिंग डायरेक्ट टू यू, यू कैन गेट बेनिफिट, व्हाट प्राइस यू आर टेकिंग, ही सेड सर 50 cents, ओके टेक 48 cents, टेक 45 cents, नो प्रॉब्लम, यू टेक। ये पहला मेरा 8 दिन का नाइजीरिया का सफर बेहद सफल रहा। पहली बार नाइजीरिया गया, पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 50 to 40 फुट कंटेनर्स विद एडवांस लेके आया। जो 52 कंटेनर्स पहले विजिट के हमारे इम्पल्स के लिए 3 महीनों का काम था, 3 महीने तक का काम लेके आया। और उसके बाद में बहुत बार फिर अलग अलग कंट्री, वो चस्का लग गया, फिर ये कंट्री जाओ, वो कंट्री जाओ, एक कंट्री जाओ, तो इसमें दिन दुगनी रात चौगनी जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छा काम रोज बढ़ते गया। फिर हमें लगा कि जो हमारे कस्टमर्स है वो सिर्फ टैबलेट कैप्सूल नहीं है, उनको लिक्विड चाहिए, उनको इंजेक्शन चाहिए, उनको न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिकल स्टोर सिर्फ टैबलेट कैप्सूल की नहीं होती है ना, मेडिकल स्टोर के अंदर सब प्रकार की दवाइयाँ होती है। तो मैंने कस्टमर बेस तो बना लिया, तो उनको प्रोडक्ट चाहिए था। इस हिसाब से फिर हमने 2017 से लेकर 23 तक 4 फैक्ट्रीज और लगा दी। यहाँ पर एक इंजेक्शन फैक्ट्री जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये हमारी आप सभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है। ये महाराष्ट्र स्टेट की सबसे बड़ी इंजेक्शन की फैसिलिटी है। यहाँ पर हमने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। आज हमारे यहाँ 1400 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 55 कंट्रीज में अपना काम है। इस तरह से जो हमारी शुरुआत क्लिनिक से शुरू हुई, तो आज यहाँ पर आज पहुँचे। आज साथ हमने 450 करोड़ का टर्नओवर किया और पालघर इनकम टैक्स कमिश्नरेट का मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर आज हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरी जीवनी समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ज्यादा बोर नहीं होंगे, लेकिन मेरे यहाँ आए आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात। अभी भी कोई चीज है जो चकित करती है मर्चेंट एक्सपोर्टर के ऊपर, और भी कुछ है लगता है कि ये है। वो है कि आदमी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी कैसी बनती है। आपको सबसे पहले आपका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई बनाओ, वहाँ बीडी नाम की एक कम्युनिटी होती है, उनको अपॉइंट करो। आज तक बीडी डॉक्टर जवळ अकेले ही है। हमारे अभी तक 500 करोड़ का टर्नओवर होता है, बीडी नाम की कोई चीज नहीं। इसमें इनसिक्योरिटी फीलिंग, मैं अगर मेरे बंदे को फॉरेन मेरी कंपनी की वजह से मेरे पैसों से भेजूं, कस्टमर का पूरा लिस्ट मालूम पड़ जाएगा, शायद उसके जीवन में डॉक्टर दिगंबर झंवर अवतरित हो जावे और वो वापस उसका खुद का काम ना शुरू करे, ये डर। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा बनने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको अच्छे लोग अपॉइंट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल सपोर्ट करने पड़ेंगे, तो ये सफर बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ जो इंडियन मल्टीनेशनल्स की अगर आप स्टोरीज देखते हो, तो उनका जो बेस है इंडिया, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, यू नीड टू कैटर दिस। शुरू में यहाँ आपके जेब में 100-200 करोड़ चाहिए बर्निंग करने के लिए, बर्निंग होगा। लेकिन यहाँ अगर तुम स्टैब्लिश हो जाते हो तो आप नाम भी कमाओगे, पैसा भी कमाओगे, आपकी वैल्यूएशन जो ब्रांड की वैल्यूएशन होती है वो बहुत अच्छी तरह से ऊंची होगी। जैसे यहाँ पर मैं 22 लोगों का काम करता हूँ, सिप्लाई, Dr. Reddy's, Zydus, Encure, Glenmark, you name all these big companies are working with us because of this infrastructure, and we have got the all imported machineries here. और टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ऊपर F&D है, तो फॉर्मुलेशन डेवलप करके हम उनको कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं जो ऑफ पेटेंट होते हैं, उस पर नजर रहती है, वो प्रोडक्ट हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि फिर भी हमारी टॉप लाइन बनेगी नहीं। जैसे रेमडेसिविर में हमने, रेमडेसिविर में मुझे पैसा भी दी, बहुत शोहरत भी दी। रेमडेसिविर पूरे भारतवर्ष में हमने सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर बनाई। रेमडेसिविर की मेरी बिलिंग होती थी उनकी लेबर पे, एल लेने के बाद लेबर, मैं 250 रुपया पर वाइल का बिल करता था, वो 3000 करते थे। मैं उस साल अगर 100 करोड़ रुपए का बिलिंग हुआ होगा मेरा, उन लोगों का 3000 करोड़ का हुआ। आपकी टॉप लाइन अगर बढ़नी है तो आपको वो एमआरपी बेस्ड आपकी इनवाइसिंग होनी चाहिए। मेरी बिलिंग होती है इनवाइस बेस्ड बिलिंग होती है, वो भी P2P है तो कॉम्प्रिहेंसिव। अगर लेबर पे है, सिप्ला तो कॉम्प्रिहेंसिव करेगी नहीं, लेबर पे तो वो जो 300 की जगह तुम्हारा 3 रुपए की बिलिंग बनेगी एक ही कम, तो आपकी टॉप लाइन भी मिलेगी नहीं आपको, ना आपको बॉटम लाइन मिलेगी। तो मेरा अभी की नजर जो है इंडियन मल्टीनेशनल्स करते हैं। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही। ब्रिक में कमला ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में दिखा देता हूँ।
हमने एक्चुअली जस्ट फॉर टैगलाइन नहीं है, वी मीन इट एक्चुअली। क्वालिटी, डिलीवरी, अथॉरिटी। मैं कहीं पर भी जाते 3 ही बातें करता हूँ, सर आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए, और चौथा जोड़ दिया क्रेडिट। मैं बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्रेडिट देता हूँ, जहाँ लोग 1 रुपया देने के लिए डरते हैं, वहाँ मैं 100 करोड़ की क्रेडिट लेके आता हूँ। और भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा कि मेरा 2-3 तक का ही डूब रहा है, पूरा पैसा बराबर आ रहा है। नाइजीरिया में शायद ही कोई रहेगा 10-12 मिलियन की क्रेडिट देगा, 100 करोड़ के ऊपर की क्रेडिट है। वो कभी अपनी यहाँ की क्रेडिट कैसे रहती है, 30 डेज, 60 डेज गिनते हैं, 90 डेज। वहाँ कोई नहीं, बिकने के बाद पैसा देगा। कभी हम लोग जाते हैं 3 महीने 6 महीने, सर योर गुड्स इज देयर, कब सी मैं वेयर हाउस, मतलब उनकी प्रार्थना करो भाई का माल बिकेगा, पैसा आएगा फिर मुझे देगा, जब आएगा तब आएगा। लेकिन यह मेरा यूएसपी रहा, इसकी वजह से मेरा बिजनेस फटाफट बढ़ेगा। अगर कोई एक बंदा 1 कंटेनर लेगा, उसका पैसा मुझे देगा, फिर दूसरा कंटेनर बुक करेगा, उसकी जगह पर मेरे पास जो बंदे हैं वो 10-10 कंटेनर एट टाइम बुक करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में आएगा, कंटिन्यूटी पे पैसा आएगा। मुझे मालूम है अभी 10 साल में मेरी जो लगाई थी पैसे वो तो निकल गया, अभी ये सब प्रॉफिट का ही पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, तो आएगा कहाँ जाएगा? 10 साल में जिसने दिया है तो वो भी आ जाएगा। लेकिन भी काफी बड़ी क्रेडिट चलती है, वो मेरा यूएसपी है। तो बेसिकली क्वालिटी, डिलीवरी, अफोर्डेबिलिटी और क्रेडिट एक है। यहाँ पर भी मैंने काफी लंबी लंबी क्रेडिट दे रखी है। कमला लाइफ साइंसेज लिमिटेड, इम्पल्स फार्मा, ट्रायोफिट और कैनफोर्ड, ये हमारी मार्केटिंग डिविजन है। अभी ये कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने की है कि पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपोर्ट्स होते हैं। 200 कंट्री में आप जीवन में पहुंच ही नहीं पाओगे, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट पकड़ लो। जैसे CIS कंट्री में मुंबई में बैठा हो कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर, उसकी एक्सपर्टीज वहाँ की है, तो उनके साथ 50-50% में क्या तू मार्केटिंग देख, मैं तुझे मैन्युफैक्चरिंग तेरे लिए देखता हूँ, और तू वहाँ पर जाके मैन्युफैक्चर का चेहरा ले जा सकता है कि वी आर मैन्युफैक्चर करके, तो उसको भी बेनिफिट होता है, मुझे। इस किस्म से हमने 5-6 कंपनियां बनाई मुंबई में, सबके ऑफिसेस है जहाँ से वो लोग मार्केटिंग करते हैं, हम उनके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बने। केवल मर्चेंट एक्सपोर्टर को देना मतलब वो प्रॉफिट में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, यहाँ हमारी वहाँ पर 50-50% हिस्सेदारी होगी। तो एक कदम आगे बढ़े डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स के। ये फैक्ट्री का फोटो है पुराना, इसके ऊपर 2 माले और चढ़ाए, यहाँ पर हम लोग बैठे, यही कमला लाइफ साइंसेज लिमिटेड। यहाँ का ये पोर्टफोलियो, लिक्विड इंजेक्शन, स्टेराइल आई ड्रॉप्स, स्टेराइल ऑइंटमेंट, ये नया प्रोजेक्ट हमने अभी डाला। स्टेराइल ऑइंटमेंट मैंने आँख की जो ट्यूब है, पूरे 15,000 इंडिया में फैक्ट्री, केवल 5 सीडीओ में इंडिया में, उसमें से हम एक है। इसमें जो ऑइंटमेंट्स या आई ड्रॉप्स बन रहे हैं, सिप्ला इस किस्म के आई ड्रॉप्स डेवलप कर रही है, जिसका रॉ मटेरियल की कीमत 10 करोड़ रुपए केजी, 10 करोड़ रुपए केजी। हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर लाना मत, जिस दिन पैच लेना वो जेब में लेके आना। ओके, गाड़ी स्पेशल गाड़ी करके लेके आ जाता है, जेब में 1 किलो लेके आएगा, गाड़ी में रख के लेके आए, यहाँ पर वेयर हाउस में रखो, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो लेने के लिए नहीं होता। स्टेराइल ऑइंटमेंट्स अब क्यों इतने कम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है? बिकॉज़ ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस क्रिटिकल है, क्योंकि इनकी -65 डिग्री टेम्परेचर इस किस्म का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ROI नहीं होता है। ROI नहीं होता है तो मैं क्यों कर रहा हूँ? तो मैं सिप्ला के नाम से जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उसका मुझे डोजर बनाने में फायदा हो जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में इसके 4 गुना पैसा मिलेगा। आपके पास डोजेस तैयार होने चाहिए, डोमेस्टिक में पैसा नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक में खुद की मार्केटिंग में पैसा मिलता है, सिप्ला बहुत कमाता है, लेकिन मुझे इतना ही देगा वो जो डिसाइडेड है। लेकिन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इज हार्डवेयर, आपको सॉफ्टवेयर मतलब उसका टेक्नोलॉजी में जो सैकड़ों करोड़ रुपया वो खर्चा करके वो डेवलप करते हैं, मैं यहाँ ट्रांसफर करते हैं, टेक ट्रांसफर करके। टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ आगे बच्चों को कैसा बनाना मालूम पड़ गया, डोजर बनना चाहिए प्रॉपर आपका। डोजर बनने के बाद में तो आपको पूरा वर्ल्ड है बिजनेस करने के लिए। तो नाम सिप्ला के लिए जो भी कर रहा हूँ या कोई भी जायडस के लिए, कोई बड़ी कंपनियों को काम कर रहा है, मुझे मालूम है इसमें मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसका पीछे का अपना मोटो ही अलग है कि हमें तो इंटरनेशनल मार्केट करना है। नेपाल हमारा बहुत अच्छा मार्केट है, हम लोग आज टॉप 10 में है नेपाल में। साइन करते होंगे ना इन सब चीजों के लिए, जो उनके न्यू, वो तो इंडिया आप साइन करते होंगे ना? इंडिया साइन होता है, फॉर्मुलेशन इज डिफरेंट बट यू नो द प्रोसेस, यू नो द प्रोसेस। हां, तो ऐसे कुछ ऑइंटमेंट्स आई ड्रॉप्स तैयार हो जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो
तो फर्स्ट टाइम इंडिया को एक रिकॉग्निशन भी मिल जाता है कि कहाँ बन रहा है, कौन डेवलप कर रहा है कमला। तो आप विश्वास करो, यहाँ पर जितने 22 इंडियन मल्टीनेशनल्स आए, मुझे पहले बताया गया था कि वहाँ पर चप्पल घिसनी पड़ेगी, जब तक तुम किक बैक नहीं दोगे उनको, उनका जो परचेस वाले को कुछ नहीं दोगे, तब तक तुमको काम मिलेगा नहीं। आप विश्वास और जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पैसे का भी किक बैक दिया नहीं जाता है, ना किसी दरवाजे पर जाकर मैंने काम लाया। वो खुद यहाँ पर आए हैं सब लोग मार्केट में देख कर कि एक कहाँ बन रहा है कमला, तो उनकी फैसिलिटी। मुझे क्या लगता है, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया अच्छी है तो लोग आपके पास सामने से आएंगे। और किक बैक की बात ही नहीं करना, वो कल्चर हम लोग वहाँ करप्ट करोगे तो आपके लोग भी करप्ट करने लगेंगे। तो मेरे यहाँ पर भी परचेस मैं तो नहीं देख सकता हूँ, कोई ना कोई तो करता ही होगा। तो मेरे ख्याल से वो कल्चर नहीं लाना चाहिए, इसलिए हमने अपने ही मीटिंग में बताया कि नहीं, कोई मांगता हो तो उसका काम छोड़ नहीं करने का और कोई काम कर लेंगे। और काम की कमी तो है नहीं, बिल्कुल काम है। मेरी जितनी फैक्ट्रीज है 365 दिन चलती, 24 घंटा चलती, 3-3, 6-6 महीने की लीड टाइम के साथ चलती है। एंड विदाउट बीडी, में पहले भी बताया, कोई बीडी नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं है। एंड मैं भी बीडी जो हूँ वो इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। कभी सिप्ला के पास गया, कभी जायडस के पास गया, कभी ग्लेनमार्क के ऑफिस में गया, सर प्लीज हमारे यहाँ काम डालो प्लीज। नो, सामने से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होनी चाहिए, ब्रेन्स वैसे होनी चाहिए। हमारे यहाँ 1400 एम्प्लॉइज है, बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेन्स इंडस्ट्री के लिए, और अच्छे से अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। कंपनी प्रॉफिट में रहे नहीं रहे, 7 तारीख को उनकी सैलरी जानी ही चाहिए, उनको बोनस मिलना ही चाहिए, 1 अप्रैल को इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे, दैट इज नॉट, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर योर बैलेंस। तो कुछ ऐसे नियम है जो रखे हैं, तो उससे कंपनियां चल रही है, बढ़ रही है, बच्चे खुश हैं। ऐसे भी कोई एम्प्लॉइज है जो 10-10, 15-15 साल से अभी भी टिके हुए हैं। ये अंदर की फोटोज है, अंदर से फैक्ट्री कैसी दिखती है। ये दूसरी फैसिलिटी, जो सबसे पहली फैसिलिटी इम्पल्स फार्मा, जो 5 डॉक्टर्स ने बनाई थी, अभी मैं सोलो ओनर हूँ उसका। ये कैपेसिटी है, अंदर की फोटोज है। ये हमारी ट्राइफिट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, एफर्वेसेंट टैबलेट बनाते हैं। ये हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी सिप्ला, जायडस, डॉक्टर रेड्डीज, इनके हर एक के लिए 1, 2, 4 ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंट्रीज है जहाँ पर अपना अभी फुटप्रिंट्स है इंटरनेशनली। ये एक्रेडिशन से, इंटरनेशनल एक्रेडिशन, कोई भी कंट्री में आपको मार्केटिंग करने के लिए उनकी ऑडिट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट रजिस्टर होते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंपनी है, काफ़ी स्ट्रिंजेंट। इट्स नॉट लाइक अदर कमोडिटी, वेरी हाईली साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। 10 साल में आपके सभी मशीनरी स्क्रैप हो जाएंगे, खराब न होने के बावजूद भी। अपने को लालच हो ही जाती है। जैसे मैं बताता हूँ कि ये टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन, टैबलेट बनाने के लिए हमने शुरू में डाले थे 20 स्टेशन, मतलब एक पंच में 20 गोली गिरेगी। बाद में 27 स्टेशन आई तो 20 निकाले, बाद में 35 स्टेशन आई। तो लालच होता है कि भाई उसी जगह में एक ही ऑपरेटर, एक एचयू के साथ में अगर 50% आउटपुट ज़्यादा निकले, फिर 50 स्टेशन आई, 51, अभी 75 स्टेशन आई, वापस निकाल दो सर, 75 स्टेशन। आप सोचो 20 स्टेशन की मशीन 75, 4 टाइम्स तो ऐसे ही तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर वो कल 100 स्टेशन के आएगी तो वापस निकलना ही। तो साइंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। 2 साल, 3 साल, 5 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आदमी की इच्छा हो ही जाती है। और सेकंड हैंड मशीन का भी मार्केट है, वो लेके जाते हैं अच्छी रेट में। ऐसा नहीं कि स्क्रैप का मतलब मशीन इक्विपमेंट मोस्टली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और योर depending on which kind of facility you are putting. If you are into OSD tablet capsule, you get all equipments here. But factory facility like sterile, injectable, you are dependent 100% on imported machinery. ये सभी मशीनरी imported है मेरे यहाँ। ये accreditations है। ये सोशल एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, कन्यादान योजना, मातोश्री योजना, सरस्वती योजना, इसके डिटेल में नहीं आते हैं। CSR के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए। कोरोना के पीरियड में 32 बेड्स का 2 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया हमने पालघर में, जो गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। शौर्य भवन अयोध्या में बन रहा है, महेश धाम। और हमारी कम्युनिटी के कुछ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ऐसे अभी 200 महिलाओं को, ओनली फॉर गर्ल लेडीज, सीनियर सिटीजन जिनकी 60-65 साल की उम्र है, उनके बैंक अकाउंट में यहाँ से 1-1 हज़ार रुपया जाता है 200 महिलाओं का हर महीने, एवरी मंथ। ये हमारा विजन है। तो ये लास्ट स्लाइड, मेरी बात यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। टू बिकम अ बिगेस्ट CDMO ऑफ इंडिया, आज का सबसे बड़ा CDMO है
अकुम्स ड्रग, जिनके यहाँ 14 फैक्ट्रीज है, 7-8 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करता है। 6 महीना पहले, साल भर पहले IPO आया था उनका। CDMO मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अच्छा, LL में करो या P2P करो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में आपको मल्टीपल फैसिलिटी, आपकी साइज भी इतनी बड़ी चाहिए कि बहुत सारे लोग काम कर सकें। अगर कैप्टिव के लिए आपकी छोटी साइज की, आपकी इतनी बड़ी साइज की जरूरत नहीं। तो आई वांट टू बिकम अ CDMO। भारतवर्ष में अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में नाम कमाना है तो 2 तरीका हो सकता है। आपकी R&D इतनी स्ट्रांग हो कि ऐसा यूनिक प्रोडक्ट डेवलप कर, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन तैयार कर दिया, पूरे भारत के विश्व में नाम हो गया। लेकिन ये जो रास्ता है बड़ा खर्चीला है और सक्सेस रेट का कोई मालूम नहीं, क्या गारंटी। तो ये रास्ते से जाना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा रास्ता है आपके पास में, आप आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इस इतनी भव्य डालो, इतनी बड़ी करो आप कि आप कह सके, जैसे मैंने आपको बोला कि ये महाराष्ट्र में बड़ी, मेरी ख्वाहिश है बाजू में गार्डन है, यहाँ पर वापस 1.5 लाख स्क्वायर फीट बना के ये भारतवर्ष में सबसे बड़ी फैसिलिटी बनाओ। तो इस किस्म का आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 100-200 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत में सबसे बड़ा नाम कर सकते हो ये रास्ते से। वहां हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद शायद कोई एक आधा प्रोडक्ट हाथ में लग गया तो शायद, लेकिन वो रास्ता अपने लिए तो है नहीं, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं है, वो सोच भी नहीं है अभी तक हमारी। तो मैं सोचा हूँ कि मैं CDMO बनूं बड़ा। और फायदा क्या है आपको बताओ, आकुम्स क्यों बना? आकुम्स क्यों बना आपको जानकारी होगी। पहले एक्साइज फ्री जोन डेवलप किए थे, एक्साइज फ्री जोन डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो यहाँ का पूरा फार्मा बिजनेस बद्दी साइड, चंडीगढ़ साइड, वो साइड में, देहरादून साइड में निकल गया। वहाँ एक्साइज फ्री जोन। एक्साइज कैसी थी? एक्साइज और ट्रांसफर कॉस्ट पर नहीं थी, MRP बेस्ड थी। MRP माइनस 65%, उस पर 18% एक्साइज। जो एक्साइज की अमाउंट थी वो आपकी प्रोडक्ट के कॉस्ट के बराबर आती थी। एग्जाम्पल पैरासिटामोल की एक स्ट्रीम देता हूं आपको, 1 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट, 10 रुपए MRP। एग्जाम्पल के लिए बताओ, डोंट गो विद द फिगर्स, जस्ट एग्जाम्पल पकड़ो। 1 रुपए पर 1 रुपए एक्साइज, मतलब आपकी प्रोडक्ट का 2 रुपए पड़ी, तो आपकी MRP और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में 5 टाइम्स का फर्क हुआ, बल्कि वो 10 टाइम का हो सकता है अगर एक्साइज फ्री जोन से बनाओ तो वो एरिया पूरा डेवलप हो गया वहां पर एक्साइज फ्री जोन पर। लेकिन अभी 5 साल के बाद जब GST इंट्रोडक्शन हुआ तो एक्साइज फ्री का कोई रिलेवेंस नहीं रहा। तो जो पहले से इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है, जहां टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, उसकी कैपेसिटी के बराबर में आज कोई पैरेलल इंस्टीट्यूट तैयार हो नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं वो ऑप्शन यहां पर मुंबई के पास दूं। मुंबई में बैठे हुए सभी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के लिए, उनके डेलीगेट्स के लिए, उनके जो अटेंडी हैं, जो आने के लिए सबसे आसान 30 रुपए में वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं, जबकि उनको वहां जाना तो फ्लाइट से जाना। और एक क्वेश्चन मार्क हमेशा इंटीग्रिटी और क्वालिटी पर रहता है, बदले साइड की क्वालिटी पर हमेशा। कोई भी आम आदमी भी लेते समय दिखता है कहाँ महाराष्ट्र, थैंक गॉड महाराष्ट्र का नाम ड्रग में बहुत अच्छा है, वो भी मुंबई का सबसे अच्छा है। मुंबई के आसपास अगर कोई फैक्ट्री है, वहां से बनाई दवा का सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो मैं सोचता हूं कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की होने की वजह से तारापुर MIDC में इस किस्म का मैं विस्तार करूं अपने काम का कि सबसे बड़ी CDMO बन सकूं। तो बिल्ट 1 फैक्ट्री एवरी 2 years लाइक एक सपना है। प्लान टू अचीव ऑलमोस्ट ऑल एक्रेडिटेशंस, रेगुलेटेड मार्केट में एंटर करने के लिए। इंटरनेशनल भी मार्केट अपने ओन ब्रांड से डेवलप करें, डोमेस्टिक मार्केट ब्रांड्स डेवलप करें, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाएं। सस्टेनेबल मतलब हम रहे नहीं रहे, कंपनी चलती रहे, इस किस्म का काम करने की योजना मेरे ख्याल से इसी साल से शुरू हो जाएगा। हम CEO अपॉइंट करने जा रहे हैं कि ये पूरे ऑपरेशंस को देखें, इंक्लूडिंग मार्केटिंग से लेकर हम उसको मॉनिटर करें अच्छी तरह से। और ऐसे लोग मिलते हैं। सिप्ला को कौन हो रहा है? वो CEO है, 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और कंटिन्यू करते नहीं है तो यू हैव टू स्टेप डाउन। L&T एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो लोग मिलेंगे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मुंबई में तो बैठना पड़ेगा आपको, मुंबई में बैठने पर आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ पर साइट पर आके नहीं काम करते हैं, वो तो प्लानिंग वाले लोग हैं। तो ये कंपनी की वैल्यूएशन सर मुझे 10,000 करोड़ की करनी है, उसका बेस बता रहा हूँ। आज हम लोग 450 करोड़ पे 2000 करोड़ का 2030 तक टर्नओवर करने का हमारा सपना है। हमारी बॉटम लाइन 20% है, तो 20% का मतलब 400 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम्स मुझे मिलेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन, 25% डाइल्यूट करना। आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई बैंक नहीं है। दिस इज डेट फ्री कंपनी, सिंगल ओनर डॉक्टर दिगंबर सर।
पर्पस आईपीओ का रेज करने के बाद में R&D, F&D इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और एक 100 एकड़ जगह पर सीडीएमओ की हमारा सपना यहाँ पर पूरा हो सकता है। और बहुत देखो इतना पैसा किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं। मुंबई में 2,500 करोड़ लेके बैठने वाले अनगिनत लोग बैठे हुए, लेकिन वो सोच चाहिए ना, तो उनको मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। तो किसी के पास 2,500 करोड़ है तो जरूर ज्वाइन हो जाओ। हम लोग एक बड़ा सीडीएमओ विश्व में बड़ा रहेगा, जो भारत में बड़ा है वो विश्व में बड़ा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Working last 29 years, 28 years, only done two things in my life. First 15 years used to be an investment banker. Used to head a company called SBI Capital Markets for 10 years. I built their cross-border business in 21 countries at that point of time, before advising government for Air India, Sterlite and all of that. But I figured out, your question is, what is not there in SBI? पैसा तो है, सबको देते ही है, इंटरनेशनल धंधा नहीं करते। वैसे कैन आई बिल्ड दैट वन फॉर देम? सो आई बिल्ड दैट फॉर 10 countries and I did both, helping Indian companies go outside, helping foreign companies come into it. Set up SBI Mutual Fund, set up their first fund in 2007, made losses in 5 companies. 6th company was a company called BillDesk. We made 200 times return in 11 years. Did all of that, built another teams in asset light spaces. बैंक तो किसको देती है? Asset को देती है। Asset light industry कौन सी है? Consumer है, technology है, education है। Are there no entrepreneurs in that space? The only difference I did is, other than looking at it from a banking point of view, I built a team which looks at business. So I understand business, I understand strategy, I understand what not to do. Same continued. Next generation, I used to head Times of India's shareholding is Bennett Coleman. So their shareholders gave me 400 companies and said, हमने 15 साल इन्वेस्ट करे हैं, पैसा लग रहा है, एक ही इच्छा है, पैसा वापस चाहिए। ठीक है, देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं। So I was on the board of that. I left them 5 years back. Was lucky to return a little over $350 million in cash as exits. From their investments, from their joint ventures, from building brands in companies in which they gave brand and took equity as well. Also one of the most hated persons because I shut down companies. I said no to a lot of people. And I built processes which should continue without me needing to be there. So my goal is to not be there. And the question is, how should be there? But I learned operating, I know what not to do, I know what people tell, I saw investors fight. I saw husband and wife as founders fight. I found companies. So I learned a little bit about how to manage stakeholders. Shareholders to सब लोग manage करते हैं. And that same learning today I run under Cover Page Ventures. Goal is simple. Everyone wants money. But I think the base that I start working with founders who have that aspiration is, how do we bring market? Second is, everyone is a great exponent of their own market. I think I built the innovation from startup and how that can be built to SME. So that's SME, and with Shweta, the journey is a little more than a year. Started more like a mentorship, but I felt कि हर महीने आता हूँ, पैसा तो देता नहीं हूँ मीटिंग में, तो member link मिल गया. Available for you, anything I can do with my brain for you. But thank you for coming and thank you for coming. Yeah, good afternoon everybody, and very special thanks to Dr. Nader for coming over here for this amazing journey and very inspiring. I know what itch means. The entrepreneur itch is something which keeps you going, and that's what I found in you. I'd say you're taking a lot of risks in your life. You cannot come from a family which is having a background of industry, or you're not so incidentally I also come from the same background. I started a very small way. I did my graduation, I did my MBA. I started a job with 300 rupees a month in data metrics. 300 rupees a month, that was way back in 85. And there was the itch again. Okay, I wanted to grow, I wanted to have more salary. So I switched over to a company called Wimco. Good multinational, giving me a salary of 2,500 rupees. Happy, no problem. Nahi, same thing, itch.
went to HCL, Hindustan Computer, one of the finest computer companies in that time. Got inspired from people who I was working around, and I said, that's it. I don't want to do anything. I'll start off now. I had a few contacts which I had built up during that time, and particularly with the government sector, etc. But did not work. It actually did not work. So I was virtually on the road, and I had also got married that time, and my wife was earning a bit, and I said, okay, I start giving lectures. So I started giving lectures in the Bombay University on computers. Then gradually I started getting some orders in a nearby area. I still remember a company called Rainbow Inks. I don't know whether you heard of it. Now its company is wound off. Very old company, 50-year-old. They gave me a break. And my house was just a kilometer away. So gave them dedicated service anytime during the day, anytime during the week, Saturday, Sunday, कुछ नहीं. जब भी बुलाया चले जाओ. फोन भी इतना ज़्यादा जब डायलिंग फोन होते थे. That company gave me a break and then started off. I developed my own ERP with a language called COBOL that time, Fox Pro, graduated into VB SQL. So again, I went on till 1999. We formed this company called IMTS Solutions and primarily focused on ERP. Somehow, the clients which we are getting were all from manufacturing sector. So we developed a expertise in that manufacturing sector and started promoting ourselves in the manufacturing sector. So our client diversified. In first year 50, 60, he started diversifying. And I had this, like the way he has customer satisfaction. So I was to hold up this, customer meets every 6 months. To call them a small group like this. And I remember last customer meet which we did was way back in 2000, when 100 customers had come, their employees or their top guys had come in Dadar, and they went happy. Of course, there were lots of alterations because everybody is not happy. So I said, okay, if you're not happy, we have called you over here. We want to make you happy. Give us suggestions. We'll make further improvements, and we'll give it to you. And then the story went on. Unfortunately, what happened is that in 2005, these big boys like SAP, Oracle started coming heavily in India, and we did not have a cash to burn and fight against them. We thought, okay, we have a domain knowledge, let's tie up with them. So we started with the partnership with SAP. We are the first people to join hands with them in India. That SAP product was good, we picked up. We are the first one to deploy SAP in cloud. That time the word cloud was not there. We took few servers and put in a data center and enabled it, and our customers started using it. And we made it a SaaS model at that point of time. So we used to sell in the EMI. Up customer per month cash ko le lo. And people are happy because SMEs, they don't have so much of money to burn for SAP. Each SAP license costs lakhs and lakhs of rupees. So we are the first one to get into. And SAP came into HANA. So we have deployed HANA. Then again this itch. Abhi kya karna hai? So I came across a gentleman who had come from Africa, and he was looking for a ERP for his company in Nigeria. Again the same story. He's saying, yeah, you're looking good, but you should go to Nigeria and meet my MD over there, and if he feels, then he will help you out, and I'll help you out whatever best time. So who will pay? You have to pay. I went over there. Somebody will pick you up from the airport. When I came out of the airport, there was nobody. And Nigeria is anyway a scary place. Nobody will, where do I go? And I called the guy, he's saying, okay, the driver is there, he should be there any moment. Eventually the driver came, they took me to the guest house, they took me to the MD the same day. MD says, okay, our presentation looked good, but my other people want to see. Fair enough. Next day we had another demonstration. Demonstration was over. Okay, you can go now. I came back, started following. 1 month, no response. I started, this gentleman, sir, you told me that go there. No, you talk to him. I spoke to him. आपको फिर से आना पड़ेगा, sir. If you want to convince, you have to come again at your own cost. ठीक है, I'm an entrepreneur, I'll go again. फिर से decided, saw it, and then finally placed the order. And you'll be surprised. After that first execution was done within a short period of 3 months,
they gave us all the units of that place in Nigeria. And when Nigeria was done, they gave me all the units of Kenya. And then Uganda and all these things. And then the gentleman introduced me to other places in London, France, etc. That story got over. Then I said, ERP market is getting stagnated. Now what do we do? So that time I wanted to set up a company in London. So I went to London for 3 years. So I set up a company in London over there. Again, it's not easy to open a bank account in this place. There are a lot of regulations. So one day I just bumped into HSBC branch. I said, I have a entrepreneur visa which was not very easy to get. And I'm not getting a opportunity to open the bank account. How do I operate? So the madam said, okay, do one thing, you come tomorrow. So I went next day. So I told her, this is my story. Okay, just wait. Started keying and everything on the system. We finished all the compliances. Now you can go, you will get the mail. And within 3 days, I got my first bank account. I opened my personal account on that basis, and I got a place on rental. So I started developing that location. Market. So 3 years I spent after my son is taking over that side. He came back to India over here again. And then we tied up with Siemens for industrial automation because that's a natural growth. So right now, we are sitting on a ERP, CRM, industrial And, automation, IoT, AI, all put together. So that is the story. And today we are the most respected, more than 25 years of experience in this field. And of course, we also handled few pharmaceutical companies in the past. And a lot of industry focuses. That's it from my side. And short and I thought you don't get bored. My name is Hariharan Iyer. Before I say who I am, मैं सर से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो मेरा काम है। क्योंकि कहीं आपने ऐसा बड़ा कोई इंडस्ट्री खड़ा कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? तो सर आप जो कर रहे हैं वही करते हैं। फार्मा में ही हाँ, रहिए। उसी में रहिए प्लीज सर। आप अपना विजन को चेंज नहीं करना सर। It all depends how frequently we meet you. Yeah, I'll come here every day. For next 6 months, I'll come here every day to take a pledge from you. That just for the lighter side, very inspiring, sir. Thank you so much. आज वैसे मैं आने वाला नहीं था. I was feeling a little unwell yesterday. Then my daughter asked me why you are not going. I said I'm feeling tired. So just get on the bus and go. So that's why I said okay, let me go. So I pushed myself. So I'm very happy I came here. So I said my name is Hariharan Iyer. I'm a sales and leadership coach. And I'm a completely odd man out here. I don't run a factory, I don't have a product, I've manufactured nothing in my life except 11 books, which I think has done a decent job. So it's more intellectual in the way we operate. And as I tell people, everybody needs me, but not everybody wants me. So, so wherever there are people, so I was talking to Jagdish in the bus and he said, are you focused on any one sector? I said, no. Wherever there are people, I am needed. They may not want me, but I want them. So, so I've been running my business for the last 17 years now. Hariharan School of Success Education, HSSE. So we mainly focus on corporate training, training people, building capabilities of people so that they can help the founders grow the business to a bigger level. So we offer sales coaching, sales training, and leadership coaching and leadership training. It's the two main pieces where an organization needs a lot of support in terms of people management. Because one area where people fail a lot is they're not able to scale the business because the people have not scaled their skills. And I think that's where I come in. It's been speaking and training was my hobby. I converted it into a profession and then into my business. So I'm actually a journalist by in the initial years of my career. I was 6 to 7 years in research and journalism, then I shifted gears. So that's a little bit about me, and always a pleasure to be with Shweta and the team in BLL. Thank you so much. Good afternoon, everyone, and thank you, Shweta, for arranging this visit, eye-opener. Privilege for us to be here with you, sir. We learned a lot today from you, and we hope we take some lessons from you and implicate that in our own business. My name is Clive Montero,
and I'm the CEO for a company by the name of Sunrise Tours and Travels. We're 15 years young, IATA approved and ISO certified travel company. I am purely airline professional. 25 years I've worked at multiple airlines like Sara Airlines, Airways, Indigo. My last airline professionalism was with Go Air. Then I joined SOTC as a global business head for the visa division. Started my own visa company with my friends called Visa Lounge. COVID आया, बंद हो गया. My wife had started this company in 2010, Sunrise Travels. She was a housewife. She wanted to do something at home. बोला चालू कर ले, चालू हो गया वो. 2023, I went under a very bad COVID infection. My lung was fibrosis, completely 90%. I was in the ICU for 30 days, taking a lot of remdesivir, took a lot of medication. I think God wanted me to spend some more time on earth. He sent me back. You are not needed there. Not needed there. I think it was too bad for them. So I joined my wife's company in 2023. It was a 1.5, 2 crore company. In 3 years, by God's grace and family support, PLL has been a good support for me. We have grown to a 25 crore company now in 3 years. And the inflation is, of course, like you said, not 5 zeros, it's 2 zeros to be a 100 crore company by 27-28. We hope to do that and want your support in whatever possible. Wherever you can help us, sir, travel, please do. Be a part of a small company that is growing and support us that. Thank you so much, sir. Yes. Hi everyone, hello Dr. Zahra. It's a pleasure meeting you once again, and I think very inspiring. And every time we meet up, I think last time we were the inspiring leaders meet, it was already an inspiring story that you wanted, and it's well enough. Thanks to Shweta for inviting us. I think a lot goes with a lot of us. Start with humble beginnings, a lot of learnings in life. Started, did my commerce, did my diploma in marketing management at salaries of 2,000 rupees right from the start, not knowing what to do. Had interest in arts, science and music, but ended up in commerce, unfortunately. But yes, but that was because I was falling short by 5 marks, even though I had Sanskrit as an additional subject in the 10th. Not good in education, but then yes, somehow did push myself to get the best. My chief mentor was, I think she knows very well, I'm a very passionate guy of music, been into singing for quite some time. My main motivator and my mentor at this point of time, my thank always has been the great Mr. Kulshan Kumar from T-Series, who advised me to get back into education and said that no, music is something which you can do it as a pastime, it's not a recurring income that you can do it. That's what pushed me back into education, and that's precisely where I was, and tried to finish I did my graduation in commerce, did my diploma in marketing management, did my MBA in finance, worked quite a lot into marketing and sales, into BPOs and call centers. I've been part of Citibank, Bank of America, and the final stint with the STC Bank, which obviously learned me a lot of laurels, and obviously with my kind of marketing experience that I had, we thought that what necessarily requires for a person to improvise himself is the kind of knowledge about the world and about the product, so that you can you'll have the ability to engage and communicate well. And that's something which was ingrained so much in me that we did train the team. We had the lowest attrition of about 3% over 5 years time. We improvised the overall assets under management from $500 million to about $2,400 million. My overall, I resigned from STC Bank as a senior regional head in 2016. It's about 10 years. But yes, God had pushed me to something else. I moved from retail banking into corporate banking, having handled assets under management about $2.3 billion there, and then moving right from scratch, starting my own business, and being from a orthodox middle class South Indian family. They feel that yes, salaried class is something which is better, and business is not something which is you're built for, and had a lot of objections from parents. But then yes, I still continued, had my own wealth management outfit, had about $20 million. But then obviously again life had something better. My main mentors again then were my clients, who were CEOs and managing partners of private equity companies and several venture capitals abroad. I used to handle the NRI business division there in SDFC Bank for about 13 long years. So with that experience and this thing, they said, why don't you get out into investment banking? And that was a spur of the moment. I mean,
it struck me suddenly that yes, why can't I use my marketing skills to try and push up investor brokers, because I used to give a very ethical, professional and a very practical way of trying to balance your investments and try and push that into several segments of the equity or the debt or whatever it is. So that's precisely what drove me to getting investment banking. So 2017 onwards, I started off as a senior investment consultant there, then moved across the ladder, tried to put things, did the evaluation of a lot of startups and companies, got to know what's the investment banking stuff and what's it all about. I mean, he's a guru already there, and I think he's still learning a lot from him. But then yes, there's a lot of stuff that still needs to be unlearned here. So I started off I did see that there is huge, because there are a lot of startups trying to engage with investors, trying to woo them to try and get the kind of investments and funding towards them. But then yes, they do project themselves in a lot more ways. But do they have the ability to try and understand what an investor would like to see in you? And that's something which is important. And that's precisely where we did a lot of research during COVID times, 2021. And we found out that yes, I think most investors at that point of time may not be in India, may not be even in the US, but then in Europe specifically, where a lot of investments, in Japan and other sites where investments are coming through, the investors were looking into impact segment, and which means social projects aligning to social, economical or environmental impact. And that's something which steered me into looking into that specific niche, because we did see that there are a lot of investment banking advisors, but if you need to be exclusive, you need to have a niche there. And that's precisely, we're proud to say that yes, we have been validated by IFC and World Bank also at this point of time. And so far, we've funded close to about $820 million. Our goal is to complete $1 billion by this financial year, and hopefully that will happen. So Swandesha Global Ventures, where I'm the managing partner. It's about 4 years as we complete right now in June 2026. And we have been specifically into the impact segment here, calling out SDGs, ESGs, building up impact frameworks, sustainability reports, financial modeling, completely clued out, basically to ensure that an investor de-risks himself when he invests into a company. And that's precisely where we exist. So may not be a direct philanthropic, yes, but indirectly we feel that yes, our give to the society at large is basically where we funnel these investments into channels or projects or companies which align to SDG and ESG and probably make a better world for ourselves. Thank you so much. Thanks. You can come. I misunderstood and not come formal That's today. okay. But anyways, most of our meetings are all formal. But thank you, Mr. Jawad. It's been, of course, everybody said it's inspirational. One thing I picked up, two things. One is how you can, unlike what Hariharan said, I think you should be not compete on the sales side, but India needs such motivation. India needs that you break all the boundaries. You're continuously breaking boundaries. From a doctor to you are thinking you want to be global. You want to be India's #1, and you have a timeline. You have a timeline for IPO, and the best and the biggest challenge with most of the entrepreneurs that I have seen is the challenges of investing in talents. And it's only I do it myself. And we have created something from nothing. So it's just, and this is what something we have excellent entrepreneurs in the country, and none other than her, she will say, but they're all about themselves. And मैं ही करूँगा, मैं ही करता रहूँगा, insecure, can't delegate, person will leave, सीख जाएगा, चला जाएगा, and all kinds of issues. And here this is a creation. So we can create such large organizations coming out of India, and so that's one. And second is which I resonate, which unfortunately we have few in the country, I guess, that you have never given for business, and in this country, and its standard इसके बिगर होता ही नहीं है.
इतना तो देना ही पड़ता है, ये तो नॉर्म है. And you are a role model from that point of view. That respect is a incredible respect, and that probably will take you really in a global market where people will respect you for a different reason. And these are the Indian entrepreneurs, some of the biggest names, sorry to say, but the number one name. If you have the biggest telecom company in India, but you may not be able to have similar telecom company in Singapore, the same entrepreneur may not be able to set up that telecom, because this is all about maneuvering the policies. Yeah, and whatever you have done in India, but can you do this globally? And if we can do this with right values, right foundation, these are my learnings from this. It's amazing. Sorry to bore you with other things, but I'm Paras Shah. I come from Gujarati Jain family. Father has been self-made. I was born with silver spoon. I didn't have to struggle. So the value of money, of course, I have not understood as much as probably some of you understood. And so I did my computer engineering in US undergrad, came back. I was going around with my wife. So by then, so I had to. I wanted to. Otherwise, generally people settle there. So I got back and said, "Kya karna? Hardware, software, hardware, software." Wipro was #1 distributor of hardware products. There was an iota of software in 91. So we क्या करें था? थोड़ा blood group में था, Guju family. So चलो hardware कर लेते, buy sell, and with whatever exposure maybe I had in US and whatever I had in my mind, I grew. There's a company called Neotelic. I started in 91, and we ended up growing to a large organization distributing Apple, Lenovo, Dell, all the hardware, software, Microsoft products. The distribution in this industry specifically works differently than any other industry. Consumer electronics or white goods, there are CNF agents, there are retail outlets directly. Here it is done through a professional distribution houses. Ingram Micro probably is a Nasdaq listed global distribution company, $50-60 billion. Another company, $50-60 billion. Nobody knows who's the owner. But distribution just goes on. And in 36 countries, there may be, and in India you have another company called Reddington. Some of you may have heard, listed company. Kevaram Chandrai Group, like Chanderias, self-created from a Singapore trader to becoming a national distributor here in 35-40 countries, in most of the Africas as well. So that's about now $2 billion market cap trading company. So you will not see any trading company to be listed. Diamond may hoga, but finally whatever happens because of the fundamentally they are all family-based organization. Here the classical thing in Reddington is there are no owners. They were not in, and whoever owned stocks, Chandrais, they never were on board. There was a gentleman called Srinivasan. He was a professional. He was given the helm of this company, and nobody knew that he's not the owner. Yeah, he scaled the business, and today even owners have taken out stakes, and he said, if I run company, AAA rated, and whatever is the revenue, 1 lakh crore revenue in so many countries, running on its own. So these were all my inspirations, and we were competing with these companies. Apple, they were distributor for Apple and whatever. So we were selling to 10,000 channel partners, B2B channel partners, nothing to directly to end customers. So we would not sell to you directly, but we would sell to somebody who sells to you. So that's how our network was. In 700 cities, 36 branches, 400 people to 15 sales and marketing, all system led. Out of 10,000 channel partners, 100, 200 knew me. Rest of them were dealing with company. I never bought, I never sold, I never did anything, more or less. I only invested on team. A team which can be better than myself. That's what I kept doing. And rest became history. It was a 1,500 crore large organization. As a group, we had another services company also, F1 Info Solution Services. So I was like, abhi kya next? Marketing services, repair services. So we became Apple's #1 service center.
gave a sweat equity to a promoter, and he built that 20% to him. The rest was all coming from Neoteric, and that's how we built it. We sold that to Flipkart, and so that was all about distribution. There are a lot of learnings which I for some other time. And twice during Neoteric we invested in ERP, Microsoft Navision, and there was IFS from Sweden. 1 crore plus. Both projects failed. That was our foundation. Both failed. One big reason, myself, that I was not involved and team was not appropriate from my side. So finally your buck stops with you as a leader. So it was me and my service provider who probably, like some of the consultants say, debit is yours, credit is mine. गलती आपकी थी, मैंने तो सब किया, गलती आपकी है. So and he was right to an extent. गलती हमारी थी, and that's where last 4 years back a new thought came that how can I help SMEs to own up and adapt technology. So entrepreneurs whom we can work directly, not through anybody. These are the vulnerable ones. So company name is Mitosis, regeneration of cells, and so that's where I thought that how I can make an impact. The foundation is technology. पहले वो लिखाई पढ़ाई चल रही थी, लिखाई पढ़ Excel में चल रहा था. अभी with India is also changing with UPI and whatever, and we still don't adapt technology as an entrepreneur. It's not done. We will have to do it, and that's where how we can step in and be an honest solution provider, consulting and services company who will not sell anything which we want to sell. We'll understand what they need, and we'll try keep giving alternate, lower cost, affordable solution as against ये लो ये लो ये लो. हम बोलेंगे ये मत लो और ये कम वाला लो. That's where we because that was my values, and those are the values in Neoteric also. We have in 25 years, 1,500 crores. We have never entertained anybody. We have never given anything, never taken anything. No gift policy, whatever. And other than when I got caught with RTO or income tax or wherever there were, should we have to pay, which I did. However, for want of business, we have never given, taken, and it was purely out of innovation. So Mitosis is the current company, and what we do is we do basic infrastructure audits. We do because computers में क्या होता है, entrepreneur को पता नहीं होता है. Excellent in what they do, but when it goes to IT, probably it's ignored. We check everything that they have. What is password policy? Employees क्या करते हैं? Phishing क्या होता है? Security threats, data are erased when employee leaves. वो क्या होता है? कहाँ होता है? कभी किसको domain name कहाँ है? पता नहीं है. 20 साल पहले domain था, कहाँ है? पता नहीं है. So all kinds of things. We do the whole audits. After that, if they want us, we can fix it. We are also fractional CIO as a service. We own up the whole IT as well. And then third party ERP solution, ERP Next is what we suggest everyone, which is open source. So life में you don't have to pay license fees. So आप 1000 लोग हो, 5000 लोग हो, no license fees, is highly customized, it's a framework. So this is what we keep recommending. We don't sell again, but we recommend and we of course help implement. So various different solution is the endeavor. Currently 100 plus customer, that's where I joined, that how I can spread this. Idea is to have 10,000 customers, idea is to have global customers, SMEs, focus on SMEs only across the world and make an impact. So we calculate our business with impact, not with revenue. How much we impacted that customer, कितना खर्चा कम करा, कितना efficiency लेके आए, क्या किया. The sales guys are gold on this and not only revenue. So that's us. Thank you. Thank you. Yeah. Good afternoon all. Thank you so much sir for this inspiring story. ये पूरा टाइटन का एक स्टोरी आया हुआ है Amazon सर क्यों नहीं बनाए हैं? सिमिलर है सर, बिल्कुल. मतलब बहुत इंस्पायरिंग है. मतलब मैं कभी भी ऐसे लगता है कि मैं इधर कम पढ़ रही हूँ. मतलब आई हैव ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट,
तो जब भी ऐसे लगता है कि अभी नहीं कुछ खत्म हो गया, तभी ऐसे कुछ सीरीज ढूंढ के मैं ये करती हूँ। आज आपका स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर BLL also. So I am Hema Vidyali. I help industries to protect their workers. We are manufacturer of industrial safety workwear, where we are specialized in fireproof jackets, fireproof suits, PPEs also. तो एंटी स्टैटिक हम लोग बनाते हैं। तो वी हैव फैक्ट्री एट भिवंडी, सोनाली में। तो सो दैट्स इट अबाउट मी। थैंक यू सो मच। Good afternoon, everyone. So I feel there are lots of people here. I'm probably the youngest. I feel in terms of experience, I had a very different start to my life. I've born with probably all things that a kid dreams of. I've had a very supportive family, very good platform, very good value-driven. I've been raised up that way, and I was always I was the easier child, or I should say I had the easier life than what my brother did. We came from a business class family, and my brother was always pressured that तेरे को धंधा देखना है, you have to step in at some point. So you do whatever you want to do, you take your MBA, but ultimately you have to come back here. And I was given a free hand when I was growing up, and funnily I was preparing for AIPMT in my 12th, and I ultimately was always passionate about fashion, and that's what I did. And I had an amazing time with my college. It was very different from what I used to hear from my classmates, and they were all in engineering and science and medical, and I was having the time of my life. I was at fashion shows and partying and doing whatever people feel that happens in fashion, but I did a lot of hard work there. Then I did more styling. Then I told them, इतना जो glamorous दिख रहा है नहीं, बहुत काम करना पड़ता है. And then somewhere down the line, I always thought that I would want to be a professional. I'd want to always render services. I don't want any capital investment. Seeing business day in day out. There are times of extreme stress कि भाई factory है, चलाना है, ये problem आ रही है, आज ये हो गया. And I would say कि मैं ना अपना दिमाग का ही पैसा लेना चाहती हूँ. I don't want to do all this capital intensive work. And straight to 2020, when COVID hit, our other part of business in our family is in gases. So at that time we were distributors for medical oxygen for 5 districts in Maharashtra. And I would see the panic at home, and I was in a very comfortable situation with my laptop and designing, and I would see sunsets every day with a cup of tea, and I would see my brother and my mother and my father just struggling to get every call, and hospitals at that time would call and be like, हमारे पास 3 घंटे का ऑक्सीजन है, नहीं हुआ तो 2000 पेशेंट्स में आप देख लो आप क्या कर सकते हो. And I really felt like I told my dad, I'm like, you give me something that I'll do something. I'll not do this comfortable job. I can do it in the night. You give me whatever you want me to handle. And he gave me certain PSA contracts. At that time, everyone wanted to get a PSA plant back to India. So he's like, कि China में से manufacturer निकालो, अपने को ये करना है. There are these government tenders. I would read contracts. I would tell him that इसमें ये problem है. We need to redo this contract. And he's like, okay, you do it as per you. So he's always given me a very free hand. And then one fine day he got a call from one of his friends, and he's like, सुनील यहाँ पे ये स्टील इंडस्ट्री है, उत्तम की कंपनी है, 6 यूनिट है, बेचना है, अच्छा लैंड है, तो इन्वेस्टमेंट ले ले. And my mother saw him from the corner of his eye. I was like कि इन्वेस्टमेंट के लिए लेके नहीं आना है, देख के आ जा, पर लेना नहीं, अभी बहुत है, it's too much on our hands. And he went and he bought it. He thought कि मेरी तो हमेशा से तमन्ना थी कि मैं स्टील में घुसूँ. And I had this opportunity. At that time, there was an availability of funds because we were manufacturing gold at that time. So he got that, and he said कि ले तो ली मैंने, मेरे पास time नहीं है. I don't have time to set this up. So he asked me, he's like कि Akanksha, you just come for a couple of months, you set it up,
and I'll take it back from you and you go back to your fashion job and you do what you were doing. And I said yeah sure okay. And I'm like आपने मेरे को दे तो दिया है, घर में किसी का steel background नहीं है. So it was pretty much, even though I'm second gen in business, I'm first gen in steel, and so is my entire family at that time. And nobody at that time, so I'm like कि ठीक है पर मैं चालू कर, what do you want me to do? So he's like कि ठीक है, you see contracts, you've seen that before, you see purchase, you see work orders, and it was a running company. So we had a few clients from there. We did very marginal business in the first year, and I had to start from steel में grade भी होते हैं, steel की strength में 2 strength दिखते हैं, क्या grade है, कैसा दिखता है. I'd never seen anything. I was in a very, you know, retail front, fashion front, very different kind of a field. So going to a factory was not a glamorous job at all, but I did that with my father, and cut to 6 years now in the business. I never left it. I said कि ठीक है, this is giving me a certain kind of purpose apart from just serving myself, and I thought about my future. I'm like कि ठीक है, fashion is not going to be, maybe it's not going to be that big a business. COVID taught us a lot of businesses were not how you perceive them to be, and they were going bankrupt. And I'm like maybe I should have a backing for myself with how I'm going to go with my life. And that's how I started. That's how I got into steel. And now 6 years down the line, now my father, I have to beg him. I'm like, please come. 3 महीने हो गए, मुंह दिखाई कर लो. फैक्ट्री में सब पूछ रहे हैं, सर का है, कब आएंगे? So he comes whenever there's expansion, big decision. Otherwise he said कि now this is yours. Then when I got married, he said अब तू ये दहेज में लेके जा और ये तू ही चला. मेरे को नहीं चाहिए. So that's how my personal story has been. Very young experience I get, and when I entered, it was a very male-dominated space. It took me 2 years just to get respect from people, and that only came when I got the technical knowledge of what we were doing. Till that time, I would sit with my father, and the person would not even look at me or entertain me. So that was a own experience, and I'm like, मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई where I'm not respected. When I used to go as a stylist, everyone would like, क्या करना है, क्या look करना है, ये makeup करना है. I would always be in a commanding position, and I feel that part is what my father saw. He always said कि you will be able to do it. You do it. And those 2 years, I told him कि I think you should get someone else. Think about your business. You invested money in this. He said, don't give it to me. And he's like, नहीं तू कर लेगी, तू try कर. And he would always say कि तुम मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, आएगा. And it paid off. I feel it paid off. What is your business into? Oh, sorry. So we make steel fabricated structures. We make warehouses. We make sheds. We make machine floors. We do a couple of cold roll forming that came with the business we took in, and we do some specialized standards, some non-standard products that are used in automation for machinery. And we've done a couple of projects in Bombay. We did about 6 metro projects in Bombay. We've done a couple of warehouses. We've done 3 in Palghar. So that's how it is. And now we're adding on services. Like what's next? My father said कि अभी steel की company बन गई, उसको infra बनाओ, बाकी सारी चीजें लाओ. So we're impaneling, civil, firefighting services. We do licensing work. Now that he's opened about 8 companies, he's like, licensing क्या है? सारे officers, सारे district बताओ कहाँ पे चाहिए. So we do some of that work, and we do electrical. We had a solar company. We still do solar rooftop installations, and we're growing now from here. Thank you so much. डॉक्टर एवरीवन. सो सर की जो स्टोरी थी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, और मैं काफ़ी सर से कोऑर्डिनेट कर पाया था. बिकॉज जैसे बीइंग ऑफ मारवाड़ी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. मैंने बहुत लोगों से सुना है मारवाड़ी और जैन फैमिली में, गुजराती फैमिली में, कि बिजनेसमैन हु वांट टू ग्रो नेवर सेटल्स. ही वांट कीप एक्सप्लोरिंग, नई नई चीज़ें ढूंढते रहता कि बिजनेस में क्या और नया चीज़ करें. तो जो सर की स्टोरी है वो मुझे इसी बात पे इंडिकेट करती है कि कैसे न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. और एक मेरा थॉट था कि मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो मैं हमेशा सिस्टर को बोलता कि डॉक्टर की लाइफ सेटल है,
सुबह 2 घंटा क्लिनिक चालू था, शाम को 2 घंटा और दोपहर में मजा करो. बट आज सर ने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, बिकॉज सर ने क्या है जो बीच का जो टाइम होता है उसमें अपना बिजनेस खड़ा कर दिया जो कि IPO आने वाला है. तो एक पूरा एक न्यू चीज है कि एक न्यू विजन है कि एक फ्री टाइम में भी हम कैसे एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग कहाँ फ्री टाइम था? 150 पेशेंट देखते थे, फ्री टाइम कहाँ था? नहीं बट जो डॉक्टर का टाइम होता है सुबह 10 से 1 बजे तक और फिर शाम को 6 से 9-10 बजे तक वो रहता है. तो दोपहर में 3-4 कोई डॉक्टर ऐसे मतलब एंजॉय करते लाइफ, और कोई डॉक्टर्स होते हैं कि चलो ये सब जैसे कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. एंड इसके बाद मैं अपना थोड़ा बताऊँ तो आई पास CA in 2013 and after that I worked with the many business owner, MSME founders, corporates clients, which include wholesaler, manufacturer. One of my client is Vasai Satarli. He is a manufacturer. He is a contract manufacturer, gold medal. So I worked with the 2-3 years for his accounts team training, accounts advisory, finalization, bank audit, loan purposes. So I worked with many clients. So nowadays it's called as virtual CFO service. But that time in 2013 to 2020, it was not a fancy name. So we are doing that work. After that COVID, we know that it's called a virtual CFO. So we are also called as ourselves as a virtual CFO. But एक चीज उसमें था कि उसमें स्केलेबिलिटी नहीं था, because we have to present that way every time. So we थोड़ा शिफ्ट किया उस चीज में, और फिर हमने थोड़ा उसको स्ट्रक्चरिंग किया. We made a 5 partners CA firm, and now we are providing the all kind of service related to accounts, tax, finance, or MSME startups, corporate clients. Thank you. So good afternoon and thank you Shweta madam for यहाँ पे लेके आए आप हमको, और इतनी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने मिली सर से. एंड मारवाड़ी, गुजराती, कच्छी, वी ऑल आर, हम ब्लड में एक और सेल लेके आते हैं जिसको विटामिन M बोलते हैं. तो वी आर, हम कच्छी गुजराती फैमिली से है, तो धंधा तो खून में लेके आते हैं. तो बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, बिजनेस पापा सब, बट मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का था. एंड फिर और हस्बैंड का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, तो वी आर चेयर मैन्युफैक्चरर, ऑफिस चेयर बनाते हैं हम. एंड फाइनेंस के साथ साथ बच्चे के साथ और एक लाइन जोड़ना था. सो आई हैव स्टार्टेड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ माय सन फॉर चेयर मैन्युफैक्चरिंग. एंड उसके बाद आगे अभी जैसे जैसे लेके जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं. सो वी आर लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट्स, procurement head for chairman, requiring chair and as well as AMC. चेयर को मेंटेनेंस करने के लिए भी कोई चाहिए, तो वो हम है. So good afternoon everyone. I am Nilesh Shah. I am representing here Peravne Power Equipments. So our founder cum managing director Rakesh Tilone sir could not They come. just joined the Yeah. global league. Last time I they just joined. So Rakesh Tilone sir could not join. So I will just introduce Tilone Power Equipments. They are into power transformer manufacturing. We are MSME. We started in the year 2004 at Rabale and now expanded to 3 manufacturing units, Rabale, Taloja and Ambernath. Our corporate office is in Thane. Our turnover crossed 325 crores this year. मैं सर आपके बारे में बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा. Give me 2 minutes. Let me introduce. So after COVID, our MD had took couple of decisions which helped him to grow from to this level. Now he is aspiring to be around 1,000 crores company in 3 years time, which is we found as a, not only me, I am heading business development in Peravne Power. So our team said कि sir 1,000 crores in 3 years is bit difficult on those things. Now I am hearing 400 crores to 10,000 crores. So this is something different. So we diversify. We are into power transformers, which is normally taken into power distribution, transmission, and generation companies.
but with foresight, after just around COVID time, our MD diversified into renewable segment, and now we are leading into power transformers for solar energy. So that is a key unique selling point for us. So our turnover has grown rapidly. So we are giving transformers to renewable market. And one thing that he diversified, he opened one company in US. It is a very something different decision he has taken. He incepted one company in US by the name of Texas Transformers, and he found some partners there. And now that Texas Transformers is they have crossed around 75 to 80 crores turnover, and we are there. It is both being led by our MD. So Texas Transformer is a US-based company owned by Indian who sits in Thane, and resides in Thane. So that is something different. Nobody does. Well, with this we are now, sir. आपके बारे में क्या बोलूँ, sir? This is my personal first experience to hear face to face such a leader who started as an Ayurvedic practitioner. जो लोग बोलते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर कोई बिजनेस नहीं कर पाते, आई एम ऑल्सो इंजीनियर. सो from Ayurvedic practitioner starting to 400 crore company and vision of 10,000 crore is something amazing. I think no entrepreneur I have seen such. I have read so many things, but medicine और pharma में मैंने ऐसे entrepreneur नहीं देखे. संघवी family वाले सुना था, but I don't know. They are themselves maybe pharma or medical background के हैं. So very inspiring story, sir. I am also from Jalgaon, but from such a humble background to your coming to this level, and what a thinking. मतलब आदमी गिरता है, आप भी ये हुआ, लेकिन गिरने के बाद ऊपर उठने के लिए जो सोचता है ना, वो आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट. आई नेवर मोटिवेशन इंस्पिरेशन चलते रहता है, लेकिन जो फिजिकली देखा ना सर कि आपने फार्मा से रिटेल में किया, रिटेल से होलसेल, बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मतलब तब समझता नहीं था 10 के बाद क्या करना है, तो मुझे सोचा था मेरे को मेडिकल स्टोर खोलना है. वाई नथिंग न्यू कि मेडिकल स्टोर सर चलेगा, बहुत चलेगा, क्योंकि आदमी को दवाई की जरूरत पड़ती है. पिताजी ने बोला नहीं भाई, अपने से बिजनेस नहीं होगा, तुम इंजीनियरिंग करो. सो आई एम हियर ओनली. लेकिन जो सर फार्मा से रिटेल से, बिकॉज आई हैव सीन दैट, तो मेरा पहले से सपना था. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स. मैं मेडिकल स्टॉक में बैठा हूँ. आफ्टर इंजीनियरिंग आई स्टार्ट ऑन माई मेडिकल स्टोर. तो गल्ला कितने का है, डेली उसको कैसे बढ़ाने का, सब किया है. तो रिटेल से होलसेल, होलसेल से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट्स, एंड नाउ IPO. तो वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर. I will be in personally touch with you. I would like to learn with you. My wife is having pharmaceutical background, but again she also shifted to teaching field. Very inspiring. I am very happy that I came. My MD gave me opportunity to come here since you could not come. So and thanks to BLL. very मतलब नेटवर्किंग में देख रहा हूँ ना, मतलब सर का तो स्टोरी इंस्पायरिंग है, लेकिन मैं हर एक का स्टोरी, इधर इट इज फाइनेंस, मोटिवेशन, ट्रैवल, मैन्युफैक्चर, मतलब फर्नीचर, वॉट एवर इट इज, स्टील फैब्रिकेशन. सो इट्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग. सो आई एम पर्सनली लर्निंग माई सेल्फ, दो आई एम एम्प्लॉयड थ्रू आउट माई करियर, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा सब में रहता है, मेरे में भी है. कभी न कभी यूटिलाइज करूँगा. थैंक यू वेरी मच. Need to introduction. Yes, good afternoon. सर, एक्चुअली ये जगह मेरे लिए बहुत इमोशनल है. बोईसर ऐसा है कि एक्चुअली BLL के थ्रू आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 इयर्स बाद में वापस बोईसर आए. नहीं तो वापस कभी मुड़ के बोईसर नहीं आए थे, बिकॉज ये जगह मेरे फादर से जुड़ा हुआ है. ही हैविंग एन इंजीनियरिंग वर्कशॉप इन बोईसर. आपको, आप बोईसर में काफ़ी पुराने हो तो आपको पता ही होगा सर, दैट इज F3/13 प्लॉट नंबर था यहाँ पे. आई रिमेंबर दैट बिकॉज उस वक्त में 15 साल का ही था, तो उतना तो मुझे पता नहीं था. सो
उनका फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप किए, जैसा आपने स्ट्रगल किए, बिकॉज ये बहुत दूर थे, एक्चुअली बॉम्बे से काफ़ी दूर जगह है ये, और उस वक्त हार्डली 2 to 3 ट्रेन्स यहाँ पे आती थी बोईसर। तो उस वक्त मतलब जिसने यहाँ पे सेटअप किया, आई नो आपने कितने तकलीफ सहन किए होंगे उस वक्त। आप यहाँ रहते थे लेकिन बॉम्बे आना जाना मतलब बहुत प्रॉब्लम है। आज भी it's not easy. अभी लोकल चालू हो गए तो हाँ, थोड़ा सा जल्दी। ठीक है। तो ये बहुत ही इमोशनल जगह है मेरे लिए। तो कैसे फैक्ट्रीज यहाँ सेटअप हुए थे सब पापा ने 4-5 साल के अंदर ही, ये सब जो आपने बताया ना चोरी हुए, आग लगे, तो यहाँ पे चोरी बहुत होते थे, वहाँ पे भी चोरी हुई, सब कुछ हुआ। बट सर स्ट्रगल करके खड़े हो गए, हमारे पापा नहीं कर पाए, तो वी हैव क्लोज्ड, हार्डली 5 साल में ही बंद करना पड़ा, एंड वापस बोईसर कभी नहीं आए। आज 33 ईयर्स बाद में आए बोईसर। तो ये बोईसर से मेरा बहुत ये है, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता था पापा के साथ आने में यहाँ पे, बट ये सब होने के बाद में फिर कभी बोईसर नहीं आया। एंड जैसे जैसे हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, छोटे से जॉब कर रहे थे, फिर हमको किशोर जी मिले जो हमारे मेंबर हैं, तो उनके साथ में अभी जुड़े हैं। अभी एट प्रेजेंट मेरे ये शेर खान के हम चैनल पार्टनर हैं। हम कस्टमर्स के, क्लाइंट के मेरे रिसर्च में आपका डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रू इक्विटीज़, कमोडिटीज़, म्यूचुअल फंड। जो नया आईपीओ आता है, कौन सा आईपीओ करना है, कौन सा नहीं करना है, जैसा कि आपका आएगा तो डेफिनेटली आपको अब पहले ही पता चल गया इट इज़ जेफरी कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। हम तो सबको सजेस्ट करेंगे कि कमला लाइफ साइंस का आईपीओ आएगा तो डेफिनेटली अप्लाई करना है आपको। तो डीमेट अकाउंट के लिए हम चाहेंगे कि आपकी कंपनीज में भी एम्प्लॉय के पास सारे डीमेट, सबके पास डीमेट अकाउंट हो, जो कि ई बॉस में आपको भी देना होगा सबको, तो वो हेल्प करेगी। तो ये हमारी जर्नी है। थैंक यू, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गया। गुड आफ्टरनून BLL फैमिली। मैं फैजल रूफिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उनके साथ जॉब कर रहा हूँ। 6 अगस्त को मेरा 50 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा जॉब करते करते। और मोस्टली आई वर्क इन रिफाइनरीज, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैकेनिकल इंजीनियर, खासकर के मेट्रो स्टेशन बनाए थे। वहाँ सलीम सर मिले कोरोना के टाइम पे, उन्होंने अपने साथ मेरे को जोड़ा। आज फैजल रूफिंग सॉल्यूशंस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी कर रही है। सेंट्रल रेलवे के जितने भी घाटकोपर स्टेशन हैं, कंजूरम आ गए या कलवा वगैरह, सेंट्रल रेलवे के वो कर रही है। MMRD के साथ जुड़ी हुई है, MRVC के साथ जुड़ी हुई है, जो विराट से लेके वलसाड तक लाइन जा रही है। और अभी पनवेल से जो नई लाइन जा रही है करजत, उसके लिए भी करजत स्टेशन का भी माल हमारा ही जा रहा है। हमारा डायरेक्ट सेंट्रल रेलवे से कुछ नहीं है। हम लोग जो जॉब लेता है हम उनसे काम ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पेमेंट के टर्म्स हैं वो बिफोर डिस्पैच पेमेंट हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सर की मैंने विलिंग पावर देखी, बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत की। जहाँ आपकी विल पावर है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। हम अगर सोचे कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आज हमारी फैजल रूफिंग सॉल्यूशन टंकी प्रोजेक्ट्स कर रही है, सिविल भी कर रही है, डिज़ाइन हमारा इन हाउस है। और आप लैंड परचेस करो, हम लोग वेयर हाउसेज बना के दे रहे हैं। अभी हमारे शाहपुर में 16 वेयर हाउस का काम शुरू होने वाला है, तो वहाँ हम लोग डिज़ाइन हमारा रहेगा, अप्रूवल हमारा रहेगा, सब हम लोग करके देंगे। और उसमें क्रेन, EOD क्रेन वगैरह लगा के आपके हिसाब से साइज बना के देंगे। यहाँ तक कि हम लोग प्रोफाइलिंग का काम करते हैं, जिंदाल की शीट्स या टाटा शीट्स यूज लेके। लेकिन आज हम लोग JSW को भी हम लोग प्रोफाइल करके दे रहे हैं और टाटा को भी प्रोफाइल करके दे रहे हैं। ये हमारा है सर। थैंक यू। Good afternoon, everybody. My name is Dr. Rahim Khan. I'm a doctor because I'm a PhD in management, not a medical doctor, sir. सर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। द बेस्ट पार्ट इज आप 10th में फर्स्ट आए। मैं हमेशा बोलता हूँ सब कुछ पूछना, लेकिन मेरे 10th के मार्क्स कभी मत पूछना। मैं ऑलवेज यस टू ओवरकम दैट ओनली मैंने PhD तक कर लिया, बिकॉज माई स्कूल डेज वर रियली बैड। और उसके साथ साथ माई फादर इज अ जनरल प्रैक्टिशनर एक्चुअली। और बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाल के इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मेरे डैडी बोलते वो प्रैक्टिस में बिजी, बोलते टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड एक्चुअली।
वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कम मार्क्स मिले इसलिए मुझे कॉमर्स लेना पड़ा 10th में. दैट वाज द रीजन. नहीं तो माय फादर का था कि ये डॉक्टर बनेगा, कंसल्टेंट बनेगा, MD MS करेगा, वो नहीं हो पाया. PhD किया तो 10th के बाद डैड ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बट ही इज हैप्पी, कुछ तो अच्छा कर रहा है मेरा बच्चा. सो आई एम अ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ स्ट्रेटेजिक ट्रेनर यू कैन से. आई कैन हेल्प फॉर योर ग्रोथ. मैंने बुक तो नहीं लिखी है बट मैं बहुत भरवाता हूँ फ्रॉम द ओनर्स to align with their visions and all. So that's what I do. I'm a management strategist and a strategic trainer. Training is important, but training which can create an impact is more important. That's what I believe. That's why I call myself as a strategic trainer. I did training with few of the members thanks to BLL Shweta ma'am जिन्होंने मुझे मेरा talent recognize किया. And also I would say कि BLL का इतना अच्छा vision चल रहा है कि what I have observed कि बहुत कुछ इनका planning है. That's what I liked about. And sir, one thing I like to know from your side कि ये mindset shift कहाँ से आया आपके अंदर कि क्लिनिक के साथ साथ इतना सब कुछ करना और after so much struggle के बाद आदमी give up कर देता है. So that's what I want to understand, what I want to learn. Thank you. So hi everyone, this is Garima Cautious and I am basically from Gurgaon. So I joined BLL 6 months back and as a community manager. So what I loved about Jawar sir is ki how to take forward your community and how to work for your community without, regardless of fact ki without thinking of while taking your interest further. Thank you sir, thank you for letting us know your inspirational journey, and it was thank you ma'am for taking us to this platform and giving us this visibility, and thank you everyone for sharing your stories, your inspirational stories. Yeah, thank you. Hi everyone, my name is Sanjana Prajapati and I am a marketing executive in BLL. It's been 2 months in BLL, working with BLL. So I am handling social media, all the social media accounts of BLL. So yeah, and I have also did 1 year of internship in digital marketing. So yes, and also I want to tell sir, I loved your story. It was very inspiring and very motivational. And yeah, thank you. I'm so happy that all of us met today, and I think बहुत मैं जानती थी but आज बहुत डिटेल में जानने को मिला. And I so मेरे में वो ब्लड नहीं है, गुजराती मारवाड़ी पैसे वाला विटामिन नहीं है, but yes बहुत ambition है. Maybe money does not motivate me so much as a person, but impact motivates me. And obviously you need money to run an enterprise, but an enterprise like BLL cannot be done by me. I am very limited. क्या मैं कर सकती हूँ? It is all when you come together. You contribute, you help in, you get better people into the community, because this business is purely measured by impact. Because इसको चलाना इतना मुश्किल है, और revenue and ROI देखो तो you would definitely choose some other business rather than running a community, because very people intensive. लोगों को लेना, उनकी dynamics, everybody comes from a different background, different egos, different turnovers, different objectives. So it's very difficult, but ठीक है, impact भी बहुत create होता है through a platform like this. And I seriously want that all of you should benefit and help each other to grow, and so the community grows. Thank you.